अस्सलाम वालेकुम। अंतराल के बाद का समय शुरू हो रहा है। हम एक बार फिर से सभी व्यूअर्स को कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की दुनिया में स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और ये लीजिए, वोगुब स्पोर्ट्स एसोसिएशन की सलामी जोड़ी अब मैदान के अंदर हैं। सलीम स्टैन और उनके कप्तान सोहेब भट्ट इस समय मैदान के अंदर आए हैं। उरूज को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर शौकत, स्वागत है आपका। Assalamu alaikum and welcome all of viewers in the universe of Kashmir Sports Watch. This is the big final of the Jugnu Fruit Premier League played at Warthora Sopor, and Wagub Sports Association are chasing the target of 141 in the allotted 20 overs. Early in the morning, BCC Bandipora won the toss. They decided to bat and they set the target of 141, and this is a formidable ground in the Baramulla district. If we see this ground, this looks lush, outgreen, lush, beautiful. This ground is surrounded by trees, and this has been nicely driven towards the backward point region for 4 run. What a classic shot this was. This was full, and over pitch batsman has plenty of time. He driven it towards the backward point region for 4 run. इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, लेकिन उतना ही बढ़िया शॉट था कप्तान के बल्ले से, सोहेब भट्ट के बल्ले से। और बहुत बढ़िया ड्राइव उन्होंने ये जरूर खेला था। और पहला चौका उनके बल्ले से, स्कोर बोर्ड पे 5 रन अब तक जरूर लगे हैं। उरूज गोल्डन एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। पारी का पहला ओवर है और इस बार फिर से अच्छी गेंद पड़ने के बाद बाहर की ओर जरूर गई थी। छेड़छाड़ करने का वहां प्रयास जरूर किया था सोहेब भट्ट कप्तान ने। भाग्यशाली रहे कि गेंद ने अंदरूनी भाग नहीं लगा है। 141 का लक्ष्य मिला है जीतने के लिए। कोई बड़ा कोई बाहरी लक्ष्य इसको नहीं माना जाता है, लेकिन ये फाइनल है, प्रेशर गेम है, ऐसे में ये भी कभी कभार बड़ा लक्ष्य बन जाता है। Yes, small totals are always tricky to chase, and here we have a small total which Wagub Sports Association is chasing, and these small targets are absolutely critical when you are chasing them in the final matches of the big events. This has been tapped towards the short mid-wicket region, and only 1 run is added in the total. The score is 6 without loss. This is the first over in the progress, and Saleem Stan is on crease. Along with him is the captain of the Wagub Sports Association, that is Soheib Bhatt. उरूज अगली बार फिर से आ रहे हैं और 2 विकेट। इस बार अच्छी गेंद की, सम्मान के साथ गेंद को खेला बैकवर्ड पॉइंट पे, जहां मुदस्सिर लेफ्टी मौजूद है। रन बनाने का कोई भी प्रश्न, कोई भी मौका नहीं था। अगर आप फील्डिंग की बात करें, स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर पे उनके कप्तान राजा सलीम हैं, जिसको बांडीपोरा की शान माना जाता है। मिड ऑफ पे भी एक खिलाड़ी है। ऑन साइड में शॉर्ट स्क्वायर लेग है और लॉन्ग ऑन है। ये फील्डिंग की सजावटी है बांडीपोरा के कप्तान ने। Talking of the fielding, this is attacking fielding, because Bandipora BCC knew that if they want to restrict Wagub Sports Association, they have to take the early wickets, and that is why slips have been taken in place, and that is why we have the we have a typical fielding which always is fruitful when you are defending the small total of 141 in allotted 20 overs. Soheib is on the non-striking end, and Saleem is going to face this ball. This has been beautifully tapped towards the short third man. There is a chance of the run out, but unfortunately for the fielder, he was not able to pick the ball cleanly. Had he taken the ball in his hand, this would have been curtains for the captain of the Wagub Sports Association. और इस बार अच्छी फील्डिंग वहां गली के क्षेत्र में जरूर हुई थी। उन्होंने अपनी बाहीं की ओर इस बार ड्राइव लगाकर इस गेंद को रोक जरूर लिया था। हाना बल्लेबाजी के बीच जरूर था, लेकिन अंत में सलीम स्टैन सुरक्षित अपनी क्रीज पे जाके पहुंच चुका है। सलीम स्टैन मैन ऑफ द सीरीज के प्रबल दावेदार हैं इस प्रतियोगिता की अगर आप बात करें, और उनके बल्ले से अब तक ढेर सारे रन अब तक जरूर निकले हैं।
और इसी के साथ लग रहा है कि ओवर की समाप्ति हुई है। पहला ओवर हुआ समाप्त 6 बिना नुकसान के। वोगुब सपोर्ट्स एसोसिएशन की टीम, उनके कप्तान सोहेब बट अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं। एक कमाल के ये खिलाड़ी हैं, खास तौर से ऑफसाइड के तो ये कमाल के खिलाड़ी हैं। ये जो जोड़ी इस समय मैदान के अंदर हैं, अगर आप खराब गेंदबाजी उनके सामने करते हैं तो ये फिर बख्शने वाले तो नहीं हैं। 141 का लक्ष्य यहाँ मिलता हुआ। Salim being the one of the staunch customer for the man of the tournament, and if you bowl wrong length to him, he is there to punish you to every side of the park here. And there are good wishes for the Salim stand. Salim, please play slowly, and Salim's wicket is crucial. We have Sam, Ramiz, we have Zuhur, so these are the wishes for the Salim, and Salim is playing absolutely beautiful. And there is a huge misunderstanding at the short point region by the fielder, and this could have been the easy ball to be stopped, but this has been missed and ball has crossed to the boundary for 4 runs. These kinds of the fieldings are not absolutely needed from the point of the view of the. और इस बार जो गलती हुई है, और वो उनके कप्तान जिसको बांडीपुरा की शान राजा सलीम कहा जाता है, शॉर्ट कवर पे वो खुद तैनात थे, उन्होंने उतनी अच्छी फील्डिंग इस बार नहीं की है। गेंद बाउंड्री के बाहर जरूर, इस बार फुल टॉस गेंद, इस बार फायदा नहीं उठा पाए। शॉट इस बार उन्होंने खेलने का प्रयास जरूर किया था, राजा सलीम के पास फिर से गेंद गई थी, इस बार वो नहीं चूके। ये पारी का दूसरा ओवर, अब तक 10 रन बोर्ड पे, कोई भी नुकसान अब तक वोगुब सपोर्ट्स की ओर से नहीं अब तक लगा है। 141 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। बीसीसी बांडीपुरा बनाम WSA वोगुब के बीच एक कड़ा, एक संघर्षपूर्ण मुकाबला हो रहा है। बिलाल इस समय इस बार बढ़िया गेंद जड़ में सम्मान के साथ गेंद को खेला, मिड ऑफ की ओर वहां खिलाड़ी मौजूद है। रन बनाने का कोई भी प्रश्न, कोई भी मौका नहीं है। उमर हजनी, सल्फी, वाहिद इस मैच का आनंद जरूर ले रहे हैं। We have wicket keeper standing back. We have a slip, deep third man, short back foot point, cover long off on the offside. On the onside we have deep fine leg, short square leg, and mid on the onside. This has been beautifully bowled by the bowler, and batsman trying to lift it but is completely beaten, and ball is taken by the wicket keeper behind the stumps. If we see, the target is 141, and that is why the bowlers are bowling fuller length. They are trying to take the advantage of this new ball, because this can seam in as well as out if they bowl fuller length. And here we have seen the glimpse of such kind of the delivery. Batsman was completely beaten. Again, this has been completely beaten. This was not that much short, not that much fuller, but this was a good length delivery, and batsman trying to tap it towards the third man but was completely beaten, and ball is taken by the wicket keeper behind the stumps. और इस बार सोहेब कप्तान ने गाइड करने का प्रयास जरूर किया था थर्ड मैन की ओर, हालांकि थर्ड मैन 30 गज दायरे के बाहर हैं, बाउंड्री लाइन पे उसको तैनात किया जा रहा है। बिलाल अगली बार आ रहे हैं ओवर द विकेट। इस बार अच्छी गेंद जेड में, इस बार गेंद सम्मान दिया सोहेब बट ने, गेंद गई उनके कप्तान शॉर्ट कवर पे राजा सलीम जहां मौजूद हैं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन, कोई विकेट के नुकसान पे नहीं। वोगुब सपोर्ट्स एसोसिएशन, अब सलीम स्टैन आए हैं स्ट्राइक पे, और उरूज गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, जो पारी का तीसरा ओवर, अपने कोटे का दूसरा ओवर इस समय जरूर कर रहे हैं। वसीम अब्दुल्ला हमारे अंग्रेजी कमेंट्री की सराहना कर रहे हैं, और डार जैन भी इस समय हमारे साथ जरूर जुड़ रहे हैं। उरूज पारी का तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं और 2 विकेट सलीम स्टैन के लिए। इस बार बढ़िया गेंद, शॉर्ट गेंद, बिल्कुल भी रूम नहीं दे रहे हैं, जगह नहीं दे रहे हैं स्ट्रोक के लिए। ऐसे में अगर आप इस तरह की गेंदबाजी करेंगे तो दबाव में जरूर आ सकते हैं सलीम स्टैन। Yeah, bowlers know that they do not have the much runs on the board, and they have to bowl on good line and length, and have to restrain WSA, because this is not the bigger target that has been set by the batsmen of the BCC Bandipora. That is why they are bowling on the good spots. They are not giving freedom to the batsman, who can freely play strokes to any part of the ground. And this has been lofted, and there is a chance of the catch taken by the fielder, but umpire has decided that this is a no ball. I think umpire has signaled no ball. I think
This is a no ball. This was taken, I think. This was taken, but unfortunately for the bowler, this was a no ball, and this is going to be a free hit for the batsman. That is Shoaib. Shoaib is going to face the ball, which is full of liberty. He has the liberty, freedom to hit, because he cannot be given out, only run out. और जिस विकेट की वो तलाश में थे सलीम स्टैन, जैसा मैंने कहा है, वो मैन ऑफ द सीरीज के इस मैदान में प्रबल दावेदार माने जाते हैं। उनकी विकेट वहां आउट जरूर हुई थी, लेकिन नो बॉल का वहां इशारा आता हुआ। इसी बीच ओरुज इस बार शॉट ऑफ स्टंप से बाहर थी, कट करना चाह रहे थे सोहेब कप्तान, लेकिन इस बार बल्ले पे ये नहीं लगी ये शॉट, और इसी के साथ शायद वहां टेक्नोलॉजी का आज उपयोग किया जा रहा है। थर्ड अंपायर की भूमिका यहां इस समय निभाई जा रही है। ऐसे में थोड़ी सी दुविधा नजर जरूर आ रही है अंपायर के बीचों बीच, लेकिन ये एक बहुत ही बढ़िया सराहनीय कदम इसको कहा जाता है, और वादिया कश्मीर के क्रिकेट के लिहाज से ये बहुत बढ़िया बात है। Yeah, we do not see such kind of the latest technologies being used by the Kashmiri cricket grounds or Kashmiri cricket supports, but here at Warpura we are seeing that this technology, it means if the umpire is having the confusion in giving batsman run out, he can declare it to the third umpire, and third umpire has the technology, he has the TV screen in front of him, and on that basis he can decide whether the batsman was inside the crease or outside the crease. This has been driven towards the deep hind leg region, and there is the chance of the 2 runs. Couple of runs have been taken. The score is 16 without loss. This is the third over in progress. और आपने बिल्कुल सही कहा है, जो टेक्नोलॉजी का यहाँ उपयोग किया जा रहा है। अमूमन वादिया कश्मीर के खिलाड़ी बल्लेबाज आउट होने के बाद संतुष्ट नहीं रहते हैं, लेकिन इसके बाद अगर आप इस तरह का इस बार ऊपरी किनारा, और उमर इलाही इस बार दौड़ रहे हैं, स्लिप कॉर्नर में वो मौजूद थे, लेकिन इस बार सोहेब बट भाग्यशाली रहे। ऊपरी किनारा जरूर लगा था, नियंत्रण में नहीं थे, लेकिन गेंद नो मैनेज लैंड में गिरी, जहां कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था। Fortune favors the brave, and he was trying to hawk the ball, but got the outside edge, and ball bloomed in the air, but it fall in no man's land, and luckily for the batsman, there was no fielder. Only 1 run was added to the total, and that 1 run has taken the score to 17. We have seen there is a good piece of a bowling from both the openers of the BCC Bandipora. They are not giving that kind of the freedom to the batsman. We know Salim Stein is such kind of the batsman who can hit every side of the park, every side of the ground, but he has been restricted by the bowlers of the BCC Bandipora. Salim has driven it towards the deep hind leg region, and until the ball is returned to the wicket keeper, there was the chance that batsman could change their ends, and this 1 run has taken the score to 18 without loss, and chasing the target of 141. WSA Wagub Supports Association are 18 without loss. कोई बाहरी लक्ष्य उनको मैच जीतने के लिए नहीं चाहिए, केवल 141 रन। इस बार अच्छी गेंद, लगातार फील्ड अनुसार गेंदबाजी कर रहे हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने स्लिप में खिलाड़ी तैनात किया गया है उमर इलाही के रूप में, लगातार वो उसी क्षेत्र की ओर गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन बिना नुकसान के वोगुब सपोर्ट्स एसोसिएशन, सलीम स्टैन और सोहेब बट जो उनके कप्तान हैं, वो सलामी जोड़ी के तौर पे आए हैं। सलीम स्टैन पारंपरिक तौर पे ये तेज खेलना पसंद करते हैं, स्ट्राइक रेट 140 से आसपास ही रहती है। ऐसे में अगर आप खराब गेंदबाजी करें तो सलीम स्टैन तो बख्शने वाले नहीं हैं। Salim Stein is the man contestant for the man of the tournament. That shows the credibility of the batsman, because he has shown his worth, his tendency and his capability throughout the tournament. That is why everyone is actually giving good gestures to this Salim Stein. He is actually the apple of every eyes here at this Warpura, because he has showcased the classic and terrific cricket here by his batting, by his keeping, and sometimes he was also given the opportunity to bowl, because he is a fast bowler, medium fast bowler as well. So Salim Stein is going to face Bilal. This is the 4th over in progress, and we have a slip, backward point, cover, short extra cover and long off. On the onside we have mid on, deep mid wicket and short fine leg on the onside. और ये जो फील्डिंग है उन्होंने बदलाव किया है, फाइन लेग का खिलाड़ी
उसको 30 गज दायरे के अंदर लाया गया है और जो डीप विकेट लेकर खिलाड़ी हैं उसको कैचिंग पोजीशन पे रखा गया है। इसी बीच बिलाल और 2 विकेट आ रहे हैं गॉर्डन एंड से। इस बार बढ़िया शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और गेंद 2 टप्पे के बाद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए सलीम स्टैन के बल्ले से ये चौका निकलता हुआ। When you give such kind of the liberty to the Salim Stan, outside off stump, full and outside off stump, Salim has the huge timing in his wrists and he played it uppishly, 1-2 bounces into the extra cover region for 4 runs. That was a shot of a glory by the Salim Stan. और कभी कभार ये दिलशान का शॉट भी खेलते हैं, वो उनका पसंदीदा शॉट माना जाता है। ये मैंने इसलिए जिक्र किया है क्योंकि हमारी ओर से ये इस समय नजर दौड़ा रहे हैं, शायद उनकी जो मानसिकता है वही करने की है। इस बार पे एक बहुत बढ़िया शॉट, इस बार गली के ऊपर से 2 टप्पे के बाद गेंद फिर से बाउंड्री के बाहर। That was a replay of the previous stroke, but this was little bit wide and Salim Stan only showed his bat to the ball and ball crossed to the extra cover region for 4 runs. And Salim, as my colleague Lovely was saying, that Salim was anticipating that Dil scoop, but this was not the Dil scoop delivery. This was outside of stump, and Salim just lifted it towards the deep extra cover region for 4 runs. That is a great piece of the batting by the Salim Stan. और इस तरह के शॉट्स खेलने से आपकी मानसिकता में बदलाव जरूर आता है। बल्ले के बीचों बीच इस बार ये शॉट उनके जरूर लगे और एक बहुत बढ़िया शॉट, धाकड़ शॉट, इस बार मिड ऑफ के ऊपर से फिर से गेंद बाउंड्री के बाहर। But this time this is not the boundary, this is out of the park for a glorious huge 6 by the Salim Stan. And this kind of the stroke, if you are lifting this ball out of the park, this shows how much capable you are to the offside region when you are lifting this ball towards the mid of boundary for a huge 6. और इस छक्के के साथ 32 रन बोर्ड पे ये पारी का 4वां ओवर बिलाल कर रहे हैं। अब तक का बहुत ही महंगा ओवर उनका साबित होता हुआ। और एक और ये रुकते नहीं है, ये उनकी काबिलियत है। इस बार ऑन साइड की ओर मोड़ा, डीप स्क्वायर लेकर खिलाड़ी रोक नहीं पाएंगे, फिर से गेंद बाउंड्री के बाहर, एक और चौका। This is absolutely wrong line and length. When you are setting the fielding in a spot and you are bowling against that field setting, you are always liable to get punishment from the player like Salim Stan. और ये जो ओवर है इसमें 3 चौके और 1 छक्का अब तक लगाने में सलीम स्टैन मौजूद लगा रहे हैं। सलीम स्टैन अभी भी जीवित हैं मैदान के अंदर। यहाँ रन बरसते नहीं, यहाँ रन बनते नहीं हैं, बिल्कुल बरस रहे हैं। सलीम स्टैन, ये मानसिकता उनकी ही होती है जो ये बचपन से खेल खेलता आए हैं, जिसको आप स्वाभाविक खेल कहते हैं। बिलाल अगली बार फिर से आ रहे हैं। इस बार उन्होंने रन पे थोड़ी चूक, इस बार अंदरूनी किनारा रन के लिए दौड़ना चाह रहे थे, लेकिन सोहेब भट्ट कप्तान ने इस बार नकारा। रन बनाने का कोई भी प्रश्न नहीं। 36 रन बोर्ड पे अब तक जरूर लग चुके हैं। First time I saw that Salim Stan, did not keep his strong visual on the ball. That is why he was little bit confused and he was not able to see where the ball has fallen. But fortunately for him, it has fallen away from the stumps and there was no harm for the Salim Stan. Last time Bilal in this over the wicket to Salim Stan, and this has been beautifully played towards the short third man region. There is no deep third man in the position and ball has crossed the boundary at the third man region for 4 runs. It means that this over has costed 22 runs in the gallery of the Salim Stan. 4 boundaries and a huge 6 this over has costed for BCC बांडीपोरा। और जी हाँ शौकत, इससे कहते हैं T20 में प्रदर्शन करना। और इस ओवर में 4 चौके और 1 छक्का सलीम स्टैन के बल्ले से देखने को मिला था। और खासतौर से बिलाल का ये बहुत ही महंगा ओवर साबित होता है। अगर आप बीसीसी रेडर्स के कप्तान के चेहरे पे ये प्रतिक्रिया देखेंगे, बहुत ही निराश है। मानसिकता के तौर पे वो अब नीचे नजर आ रहे हैं और ऐसे में वो अब दबाव में यहाँ जरूर हैं। Not only if you see the body language of the players of BCC Bandipora, that looks sluggish, that looks that lethargic, and there is no kind of spark, that nimbleness in their physique. They are looking very I can say pessimistic. There is that negativism in their fielding. That is why we have seen batsmen are attacking the bowlers in a sparky way. 40 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। पारी का 5वां ओवर लेकर आ रहे हैं उरूज, जो गॉर्डन से और 2 विकेट करेंगे सोहेब भट्ट के लिए। इस बार शॉर्ट गेंद थी बैकफुट पे, इस बार खेलने का प्रयास जरूर किया था, गेंद गई
मिड ऑन की ओर वहां मुदस्सिर लेफ्टी मौजूद हैं, उन्होंने गेंद को उठाया, रन बनाने का कोई भी प्रश्न, कोई भी मौका मौजूद नहीं है। 141 रन मैच जीतने के लिए करने हुए, जैसा हम सहयोगी कमेंटेटर बता रहे थे। ये कोई बड़ा, ये कोई भारी लक्ष्य T20 में माना नहीं जाता है। आपको शुरुआती झटके देने बहुत जरूरी। ओरेज अगली बार फिर से आ रहे हैं, इस बार आगे की गेंद गाइड किया, पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के बीचों बीच, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। This is a glorious stroke played by the captain of the WSA. This was over pitch and he driven, gloriously towards the point region for 4 runs. These kind of the strokes, they basically boost up the confidence of a batsman. If you are struggling and if you suddenly you are picking such kind of the stroke, it gives you that inspiration and that encouragement to face the next delivery, and this we have seen here this time. And next delivery has been lofted over the point region for 4 runs. 1, 2, 3 bounces into the deep point boundary for 4 runs. This is a bad piece of the bowling from the BCC point of view. और ये देखिए प्रतिक्रिया देखें उमर इलाही की, जो स्लिप कॉर्नर में नजर आ रहे हैं। अपने गेंदबाजों से वो खुश बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। और सोहेब भट्ट के अब तक के दर्शनीय स्ट्रोक जरूर निकलते हुए, और सोहेब भट्ट इसके लिए जाने जाते हैं, ऑफ साइड का उनका पसंदीदा इलाका माना जाता है। इसलिए आप देखिए आई हैंड कोऑर्डिनेशन से वो जरूर खेलते हैं। एक अगली बार इस समय ऑन साइड बिल्कुल लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद थी, उसको नियमानुसार आप आउट नहीं दे सकते हैं। इस 1 रन के साथ 49 रन बोर्ड पे ये पारी का 5वां ओवर चल रहा है। One thing is certain, that the players of the BCC Bandipora are not going to understand the bowler what kind of the bowling you have to bowl. I have not seen in this over, even the bowler has been punished, but I have not seen even the captain or the senior players going to the bowler how you have to bowl, what kind of the bowls you are going to bowl in this match. And this is, I think, from my perspective, should not have happened. This time Salim have been bowled by the bowler. Salim wanted to loft it over the mid wicket, and he has been castled by the bowler, and middle stump has been uprooted by the bowler to 5-6 meters away from the stumps, and that shows the इस बार उरूज की वापसी यहाँ देखने को मिलती हुई। हालांकि पिछले ओवर में कुछ बड़े स्ट्रोक सलीम स्टाइन के बल्ले से जरूर निकले थे, लेकिन इस बार बढ़िया वापसी। कहते हैं ना शौकत, क्रिकेट में हमेशा वापसी करने का आपको मौका जरूर मिलता है। उरूज के पिछले 2 ओवर महंगे साबित हुए थे, लेकिन इस बार सही ठिकाने पे गेंद सलीम स्टैंड ने अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास जरूर किया था। गेंद जाकर सीधे विकेटों पे, ये पहली विकेट का वहां पतन होता हुआ। लेकिन शौकत, एक बात निश्चित तौर पे माननी पड़ेगी, 141 का पीछा अगर आप कर रहे हैं, उसके बाद आपकी टीम 5 ओवर में 50 रन बोर्ड पे हैं, तो उसको एक अच्छी शुरुआत, ठोस शुरुआत कह सकते हैं। As an opener, if you are making 30-35 runs out of 15 balls and while chasing 141, it means you have done your work, you have set the tune for the team to go for the victorious side. And here we have seen Salim have played the cameo which the team was in need, and we have seen now he has been bowled, but he has done his work for what he was sent for the middle. लीजिए सलीम स्टैंड के आउट होने के बाद अब वादिया कश्मीर के एक लोकप्रिय खिलाड़ी साजिद आमला, जो बोनियार से ताल्लुक रखते हैं, वो अब मैदान के अंदर आ रहे हैं। ये भी एक खतरनाक खिलाड़ी हैं T20 फॉर्मेट के। ये तेज खेलना पसंद करते हैं, और स्वाभाविक तौर पे जिस तरह की परिस्थितियां इस समय मैच के अंदर हैं, तो ज्यादा बड़े स्ट्रोक्स खेलने की जरूरत नहीं है। आप अपना समय मैदान के अंदर बिता सकते हैं। ये पारी का 5वां ओवर, 49 रन 1 विकेट के नुकसान पे WSA वोगुप की टीम। Platform is set for the new batsman. He has the privilege, he has the liberty to take some deliveries. He can even take some dot deliveries till he makes a good contact or good eyesight of the ball. Sajid Amla is the new batsman. He is hailing from the Boniar Baramulla, and he's going to give a company to his captain, who is Sohaib at the non-striking end. This has been beautifully driven towards the long off boundary for 4 runs. This is the classic Hashim Amla stroke played by the Sajid Amla here. और आपने बिल्कुल सही कहा शौकत, ये अब तक का सबसे खूबसूरत स्ट्रोक था, क्योंकि
सर देखिए कितना स्थिर था और बैट की पोजीशन आगे आकर गेंद वहां खिलाड़ी मौजूद और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। उन 4 रनों के साथ अब 53 रन बोर्ड पे। गेंद में कोई कमी नहीं थी, कोई खराबी नहीं थी। हालांकि ये बहुत बढ़िया शॉट खेला था साजिद आमला ने, इसीलिए ये जाने जाते हैं। आप स्ट्रोक देखिए कितना उम्दा उन्होंने जरूर लगाया है। Absolutely going to the pitch of the ball and watching it carefully and mid-leg placing perfectly towards the long off boundary for 4 runs. This shows that how kind of the caliber he has in his batting, Sajid Amla. और गेंदबाजी में पहला बदलाव भी अब देखने को मिलता हुआ। उमर इलाही को अब गेंदबाजी के लिए लाया गया है, जो रॉबी के भाई हैं। आज रॉबी और नासिर कोहली इस टीम का हिस्सा नहीं थे और मुझे लग रहा है कि शायद यही एक कारण है कि इस टीम की इतनी ज्यादा दुर्दशा हुई है, क्योंकि वो एक अलग तरह के खिलाड़ी हैं, उच्च कोटि के खिलाड़ी उनको माना जाता है। जब आप वो खिलाड़ी टीम में शामिल नहीं करते हैं तो इस तरह की दिक्कतें फिर हमेशा नजर आती हैं। फिलहाल ये पावर प्ले का अंतिम ओवर है। 53 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। एक विकेट सलीम स्टैंड के रूप में उन्होंने खोया है, लेकिन उन्होंने एक आतशी पारी जरूर खेली है, ये मानना पड़ेगा। Absolutely, Salim has did what he was supposed to do in the first 5 overs. Now there is first bowling change from the road end, and Omar Ilahi, the brother of the Robbie, Ishtiaq Robbie, is going to bowl from the road end. To him is going to face the captain of the WSA, Sohaib. Sohaib is going to face 53 runs are on the board, and this is the 6th over in progress. हालांकि कीपिंग करके वक्त ये चोटिल जरूर हुए थे सोहेब बट, ये उनके कप्तान हैं। और इस बार अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद थी, भाग्यशाली रहे, विकेटों के बहुत ज्यादा करीब से ये गेंद गुजरी और ये एक अच्छी टप्पा उसको जरूर कह सकते हैं। Absolutely, this was a change of pace. It did not rise much. There was not that much bounce, and fortunately for the batsman that it was not in the middle of the stumps. It could have been dangerous for the batsman. और सबसे बढ़िया बात, अगर आप इस तरह के स्ट्रोक्स खेलते हैं, अब स्लिप कॉर्नर में कोई भी खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा है स्लिप, और इस बार बढ़िया गेंद थी, उनका पसंदीदा स्ट्रोक ये था, लेकिन इस बार बल्ले से ये गेंद नहीं लगी है। और उमर इलाही अब तक अच्छे पूर्व अनुमान, पूर्व अनुशासन के साथ गेंदबाजी जरूर कर रहे हैं। शायद वो लंबा अनुभव उनके पीछे भी है। T20 फॉर्मेट की अगर आप बात करें तो 350 मैचेस का उनका अनुभव है। अपना अनुभव पूरी तरह से वो झोंकते नजर आ रहे हैं मैदान के अंदर। We have seen in the first 2 deliveries of this over, one was change of pace and next delivery was very fast. That's why batsman was completely beaten, and next time he has been completely beaten. This time he wanted to cut, but this was not the ball to be cutted towards the backfoot point, and is completely beaten. Ball is taken by the wicketkeeper behind the stumps. Score is 53 for the loss of the 1 wicket. This is the 6th over in progress, and now we are witnessing huge number of the spectators are coming to watch this match, because the match is going to reach the conclusion of this tournament. और लगातार बढ़िया टप्पे पे इस बार गेंदबाजी हो रहे हैं। अब तक उमर इलाही के ओवर में कोई भी रन उन्होंने नहीं बनाया है। ये चीज दर्शाता है कि उमर इलाही जिस तरह की गेंदबाजी करता है उनके लिए उतना आसान नहीं होगा। हालांकि मुझे लग रहा है कि उनको थोड़ा सा आगे ओवर करना चाहिए था, जब वो गेंदबाज उनके महंगे साबित हुए थे। अगली बार फिर से आ रहे हैं और 2 विकेट इस बार गाइड किया। वहां गली क्षेत्र के अंदर खिलाड़ी मौजूद हैं, रन बनाने का वहां कोई भी प्रश्न, कोई भी मौका मौजूद नहीं है। ये पावर प्ले का अंतिम ओवर चल रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद मैडन ओवर की ओर ये जा रहा है, अगर ये गेंद भी वो ठीक तरह से कर पाए। He has bowled wicket to wicket outside off stump. He has not given any freedom to the batsman to make scores, and this is the last time in the over. Umar Ilahi to Captain Sohaib. This has been gently played towards the point region. There is no possibility of any run, so that marks the end of the 6th over. This is the first maiden over of the match, and bowled by the Umar Ilahi, the brother of the Ishtiaq Robbie. After the accomplishment of the 6 overs, WSA, Wargup Supports Association, have made 53 runs on the board for the loss of the lone wicket in the shape of the Salim Stain. 6 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन 1 विकेट के नुकसान पे और आउट होने वाले खिलाड़ी सलीम स्टैन, जिन्होंने आज आते ही कुछ दिलकश स्ट्रोक्स जरूर खेले थे। हालांकि पिछला ओवर मैडन जरूर किया था उमर इलाही ने, जो पावर प्ले का अंतिम ओवर था। अब जो है
अब नियमानुसार आप 5 खिलाड़ी दायरे के बाहर रख सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं फील्ड में परिवर्तन किया जा रहा है और गेंदबाजी में भी एक और बदलाव देखने को मिलता हुआ। साइड स्क्रीन एंड से दूसरे गेंदबाज को लाया गया है और कोशिश होगी कि उमर हिलाही का अगर वो साथ इसी तरह से देते रहेंगे। जुनैद को लाए गए हैं अब और पिछला ओवर मैडन रहा था, तो अब कोशिश होगी साजिद आमला की ओर से कि इस ओवर में रन बटोरे जाएं। 6 ओवर की समाप्ति के बाद फिलहाल 53 रन बोर्ड के ऊपर हैं। जुनैद इस समय अपने बाजुओं को इस समय खोल रहे हैं। राजा सलीम जो उनके कप्तान हैं, बांडीपुरा की शान इनको माना जाता है, उनके साथ इस समय वो बातचीत जरूर कर रहे हैं। अब सारी तैयारियां समाप्त हो चुकी हैं, तो साजिद आमला अब सामना कर रहे हैं जुनैद का। साजिद आमला अभी अभी आए हैं सलीम के आउट होने के बाद। ये दाएं हाथ के खिलाड़ी हैं, ऑफ साइड में ये खेलना पसंद कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ उनके शरीर पे ये गेंद लगी थी। अच्छा टप्पा, अच्छा उछाल। There was a steep bounce, first ball bowled by the Bilal, and there was a steep bounce. Sajid Amla was completely beaten. Luckily for him, it did not reach in the hands of the fielder at back foot point. It fall 2 bounces before the fielder. The ball was, not that much short. There was a steep bounce. It stuck on the gloves of the Sajid Amla. Luckily for him, it did not went straight in the hands of the fielder at back foot point. In second time in the over, Junaid to Sajid Amla on the onside, and there is a lollipop dropped by the fielder at short fine leg. Has he dropped the catch here? What do you think? This was not the difficult, this was the easiest catch you can say in the cricket. ये बांडीपुरा के युवा खिलाड़ी हैं और मुझे लग रहा है अब ये इस चीज के साथ अब चोटिल हुए हैं ये, और ये बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं। जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने बिल्कुल चित्र देख सकते हैं, उन्होंने कैच लेने का प्रयास जरूर किया था, उनके शरीर पे गेंद उसके बाद जाके टकराई थी। हम आशा करेंगे कि ये स्वस्थ हो, फिट हो, और ये अच्छे संकेत आ रहे हैं, वो उनको हाथ से शायद ये संकेत दे रहे हैं मैं पूरी तरह से फिट हूँ। हालांकि एक कैच वहां ड्रॉप जरूर हुआ है जो होना चाहिए। It directly struck on his chest and he fallen down and put the catch behind his body, and unfortunately Tawseef has dropped the lollipop and has given मौजूद थे थर्ड मैन दायरे के अंदर, और एक आसान कैच वहां होना चाहिए, लेकिन उन्होंने अच्छा प्रयास जरूर किया था। हालांकि अभी ये युवा खिलाड़ी हैं, बहुत कुछ सीखने को तौफीक को आने वाले समय में जरूर मिल पाएगा। He's hardly 14 or 15 years old, and he's actually here having the experience how to play in such kind of the big event. This has been beautifully driven towards the short fine leg region for 4 runs. There was no fielder in the position, and the captain of the WSA has played it beautifully and sends the ball towards the deep fine leg boundary for 4 runs. And और इन 4 रनों के साथ 60 रन बोर्ड पे। हालांकि ये जो चौका लगा था ये बल्ले से इस बार नहीं, ये लेग बाई के रूप में इस बार लगा था, और जुनैद की दिशाहीन गेंदबाजी ये जरूर थी। और बिलाल सुल्तान जो ऑफिशियल फोटोग्राफर हैं वो इस समय अपना कार्य इस समय कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, जगह बनाकर स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, पहले ही हट गए थे ऑफ स्टंप से बाहर, लेकिन इस बार बल्ले से ये गेंद जरूर नहीं लगी है। जुनैद इस समय साइड स्क्रीन एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक 60 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। ये पारी का 7वां ओवर जुनैद डाल रहे हैं। उनके कप्तान बांडीपुरा की शान वसीम राजा इस समय शॉट कवर पे खुद मौजूद हैं। लगातार खिलाड़ियों से वो आपस में बातचीत भी जरूर कर रहे हैं। अगली बार फिर से इस बार शॉट गेंद गाइड किया थर्ड मैन की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, वहां मौका था 1 रन बनने का। दोनों खिलाड़ियों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ 61 रन बोर्ड पे, और अब तक एक खिलाड़ी आउट हो चुका है, वो है सलीम स्टैन। Yeah, beautifully played late cut. This reminds me the strokes of the Inzimam ul Haq. He was the master of playing late cuts, and this time we have seen such kind of the imitation done by the captain of WSA, that is Sohaib. He has beautifully late cutted it towards the deep third man for a single, and that has taken the score to 61 for the loss of 1 wicket. This is the 7th over in progress.
Junaid is bowling from the road end, and Sajid Amla is going to face, and they beautifully played towards back foot point. There is no addition to the total because this went straight into the hands of the fielder there, so there was no possibility of the run. 7 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन 1 विकेट के नुकसान पे WSA वोगुब, और ये जो जोड़ी इस समय मैदान के अंदर हैं, उनके कप्तान सोहेब बट और उनके सबसे बढ़िया खिलाड़ी साजिद आमला। खैर न केवल ये इस टीम के अच्छे खिलाड़ी हैं, बल्कि अगर आप वादिया कश्मीर की बात करें तो ये महान खिलाड़ियों में साजिद आमला का शुमार किया जाता है। उमर इलाही ने पिछला पावर प्ले ओवर मैडन किया था, तो एक बार फिर वो गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं साइड स्क्रीन एंड से ओवर द विकेट। लेकिन यहाँ तलाश है विकेटों की, क्योंकि 141 रन वोगुब को जीतने के लिए करने होंगे। अगर वो इसी तरह से चलते रहेंगे तो मेरा मानना है कि कोई मुश्किल उनके लिए नहीं होगा, कोई दुविधा उनके लिए नहीं होगी। तो अगर बांडीपुरा को इस मैच में जीवित रहना है तो विकेट चटकाने होंगे। After the fall of Salim Stain, there has been restriction on the score. BCC Bandipora have been able to control the scoring rate, but they have to take the wickets if they want to remain in the match, because they do not have set the big total for the WSA Wagub. They are only chasing 141. Next ball has been beautifully played towards the point region, and there is no possibility of any run. So if BCC Bandipora wants to make control over the game, they have to pick the wicket of the Sajid Amla as well as the Sohaib Butt, because these are the two dangerous batsmen, and this ball have been lofted, but this ball in no man's land. Luckily for the captain that there was no fielder there at short square leg, and only 1 run is in the total. The score is 63 for the loss of 1 wicket. ये पारी का 8वां ओवर उमर इलाही कर रहे हैं, अपने फील्डरों से थोड़ा सा निराश नजर आ रहे हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे जरूर देख रहे होंगे। इस बार सोहेब कप्तान जो हैं उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया था, हालांकि नियंत्रण में बिल्कुल भी बल्लेबाज वहां नहीं थे। मुदस्सिर लेफ्टी डीप स्क्वायर लेग पे वहां मौजूद थे, कैचिंग पोजीशन पे, और शायद उनको वो ये कह रहे थे कि थोड़ा आगे आना चाहिए। 63 रन बोर्ड पे अब तक जरूर लगे हैं। इस बार अच्छी गेंद साजिद आमला ने गेंद को धकेला ऑन साइड की ओर, वहां शॉर्ट मिड विकेट खिलाड़ी मौजूद हैं। तौफीक उन्होंने गेंद को उठाकर विकेट कीपर के हाथों में दिया है, लेकिन 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ 64 रन बोर्ड पे ये पारी का 8वां ओवर उमर इलाही डाल रहे हैं। 141 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे। थर्ड अंपायर टेक्नोलॉजी का यहाँ उपयोग किया जा रहा है। शौकत भाई, ऐसे में आप क्या देख रहे हैं? मतलब वादिया कश्मीर में लगातार इस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय के लिए, खास तौर से क्रिकेट के लिए, ये बहुत बढ़िया संकेत है, और जो ऑफिशियल अंपायर होते हैं मैदान के अंदर, उनके लिए भी ये एक बहुत बढ़िया चीज है। Absolutely, this is a wonderful treasure or gift for the official umpires, both the official umpires, because sometimes they are always in pressure when they have to decide the run outs or the leg before wickets, as well as the caught behinds. So when they have the luxury of this third umpire, so TV umpire, so it gives them the privilege that they can refer these kinds of the chances to the third umpire for the decision making, or for making correction in the decisions. And today we have witnessed here, I have seen first time in this premises or in this Baramulla that we have been having the third umpire for any match in district Baramulla. और बिल्कुल आपने सही कहा है, इस तरह की टेक्नोलॉजी जब आप प्रयोग में लाते हैं। इस बार किनारा जरूर लगा था साजिद आमला को, लेकिन स्लिप कॉर्नर में कोई खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे हैं, और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भाग्यशाली रहे, बिल्कुल नियंत्रण में नहीं थे, और गेंदबाज देखिए कितने निराश नजर आ रहे हो। कभी कभार शौकत आपको इस तरह के शॉट्स की यहाँ जरूरत भी होती है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, भाग्य का साथ होना बहुत जरूरी, और इस बार देखिए कभी कभार इस तरह के शॉट्स हमेशा फील्डर के हाथों में भी जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं, रन लेकर जा चुके हैं। When you are bowling such a fantastic line and length, and your team is requiring wickets from you, why are you not keeping first or second slip? Had there been first slip, this would have been easily taken by the fielder at first slip. But fortunately for the batsmen and unfortunately for the BCC Bandipora, there was no first slip in position, and that costed them the wicket as well as 4 important runs, and they have to both
contend runs as well as pick wickets if they want to defend the small target of 141. Junaid is bowling his second over from the side screen, and to him is facing Sohaib. Sohaib is facing him 68 for the loss of 1 over, 1 wicket after the accomplishment of this 8 overs. The score is 68. WSA chasing down the target of 141 in 20 overs. Junaid to Sohaib. Sohaib is the captain of WSA who was the opener and is here playing against BCC Bandipora. Junaid from the side screen end to Sohaib, and outside leg stump, and umpire has no hesitation by calling this wide, and this one extra addition has taken the score to 69. 69 रन बोर्ड पे ये पारी का 9वां ओवर जुनैद डाल रहे हैं, और बट आखिर लिख रहे हैं कि आई स्टैंड विथ बीसीसी बांडीपोरा। जहां बीसीसी बांडीपोरा एक बढ़िया टीम मानी जाती है अगर आप पूरे वादिया कश्मीर की बात करें, और ऐसे में अगर आप उनके समर्थन हैं तो आप उनके लिए दुआएं जरूर करें। वो विकेट की तलाश में है। यहाँ इस बार शॉर्ट गेंद गाइड किया थर्ड मैन की, और जानबूझ के ये स्ट्रोक खेला गया इस 1 रन के साथ। 70 रन बोर्ड पे ये पारी का 9वां ओवर इस समय जुनैद डाल रहे हैं। और जैसा वो लिख रहे हैं, बट आखिर लिख रहे हैं प्लीज मूव योर कैमरा अपवर्ड्स, और जहां प्रयास हम जरूर कर रहे हैं कि ऊपर लाने का लगातार हम प्रयास कर रहे हैं जो व्यूअर्स के लिए अच्छा हो। इस बार अच्छी गेंद, बढ़िया उछाल, और इस बार कीपर भी वहां चूकते नजर आ रहे हैं, और युवा खिलाड़ी गेंद को लाने के लिए दौड़ रहे हैं। तब तक आसानी के साथ उन्होंने दौड़न अर्जित किए हैं। Uneven bounce there. I have seen since morning number of deliveries have wrapped up abruptly, unpredictably, and there was no kind of the anticipation from the batsman that the ball would rise as much as this ball has risen. So this time both batsman as well as wicketkeeper was beaten, and luckily there was a good comeback from the fielder at short fine leg, and he has stopped the ball and has restricted both the batsmen to only 2 runs, and those 2 runs have added the score to is 71 for the loss of हाशु लिख रहे हैं कि मोमिन आज का मैच का हिस्सा था। मोमिन ने गेंदबाजी से 2 विकेट, महत्वपूर्ण विकेट जरूर लिए हैं। अपने बल्लेबाजी का वो इंतजार कर रहे हैं। आबिद वानी, आई स्टैंड विथ वोगू ब्रदर सलीम। और जी हाँ, अगर आप भंडारा से ताल्लुक रखते हैं तो निश्चित तौर पे, और इस बार अच्छी गेंद, साजिद आमला ने इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन विकेट कीपर ने बहुत बढ़िया काम किया है। पीछे से कुछ रन अपनी टीम के लिए जरूर बचाए हैं। अब तक अगर आप देखें 71 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। अभी भी 80 रन उनको मैच जीतने के लिए चाहिए। कहना पड़ेगा, अगर आप T20 हिसाब से सोचते हैं तो कोई बड़ा लक्ष्य नहीं माना जाता है वोगुब के लिए। वो हम इस परिस्थितियों की बात करें, क्योंकि बांडीपुरा को विकेट चाहिए। अगर इस मैच में उनको वापसी करनी है, अगर इस मैच में जीवित रहना है, तो बांडीपुरा विकेटों की यहाँ अशद जरूरत है। 80 runs are still to be needed for the WSA. They are huge runs if you see the final match of the Jugnu Fruit Premier League Varpura. But if BCC wants to stop WSA by chasing 141, they have to take wickets at every juncture of the match, because if they do not take wickets, if they do not pick wickets, they may have to face the music of the loss here by the hands of WSA, because 2 big names of the Kashmir Valley, Sajid Amla, along with him the captain of the WSA, Sohaib Butt, is playing. वसीम अब्दुल्ला मुझे ये जानकारी दे रहे हैं। इजाज लोन जो हमारे गांव के लेजेंड हैं और इस टीम के साथ पिछले 30 वर्षों से वो जुड़े रहते थे, और एक खिलाड़ी के तौर पे वो इस टीम के साथ है। वो एक सरकारी उस्ताद हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो अपनी भूमिका इस समय निभाते हैं। और वसीम अब्दुल्ला की ओर से मुझे ये जानकारी मिल रही है। एजाज भाई, हम आपका अभिवादन करते हैं, खैर मकदम करते हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच में, और मुझे
मैं आशा करता हूं कि आप बहुत खुश होंगे जिस तरह से आपकी टीम इस समय शौकत भाई वोगुप प्रदर्शन करती है और एक बड़ी टीम के सामने बीसीसी बांडीपुरा। Absolutely, the performance WSA is showing here, executing here, is absolutely praiseworthy because they are playing against the big side, that is BCC Bandipora. That is a very big side, though there are not many players playing in the side today, but how WSA has played in this tournament. Yesterday we have seen they have won the one tournament at Panjipora, and today they are heading towards the another victory. That shows the class, that shows the patience, and that shows the tendency WSA players are having. Not only they, but how they have been boosted by the management, that is also commendable and praiseworthy. That is why they are getting the fruits here. उमर इलाही अब तक विकेट लेने में असफल जरूर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही किफायती गेंदबाजी जरूर की है। अब तक हाथ खोलने का वो बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं। सोहेब भट्ट उनके कप्तान अब स्ट्राइक पे हैं। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर झूमती हुई गेंद, और इस बार विकेट कीपर के दस्तानों में जरूर गई थी। वहां रन बनने का वहां कोई भी प्रयास नहीं था। लगातार ऑफ स्टंप से बाहर ही गेंदबाजी कर रहे हैं उमर इलाही। ऐसे में अब स्लिप कॉर्नर में भी एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं कैचिंग पोजीशन पे, और ये एक बहुत बढ़िया संकेत है क्योंकि पिछले ओवर में उसी दिशा की ओर एक गेंद जरूर गई थी जो साजिद आमला का किनारा लगा था। That's a nice gesture by standing one slip, because Umar Ilahi is bowling absolutely good line and length outside off stump, and he is having the chances of getting the edge from the batsman's bat if he bowls this kind of the line and length, and slip as well as wicketkeeper is ready to take any kind of the chance if chance is created by the bowler here. We have seen a fantastic piece of bowling is being bowled by the Umar Ilahi from the side screen end, and he has been able to beat both the batsmen, the captain as well as the Sajid Amla, because this has been lofted towards the deep mid-wicket region, but there is a protection in the shape of the fielder, and until the ball is recovered, there was a chance for both the batsmen to cross for the 2 runs, and these 2 runs have taken the scoreboard to 75. Sohaib is playing on 17, along with him Sajid Amla is playing on 7 runs. सलीम स्टैन ने शायद 38 रनों का योगदान दिया। 6 चौके और 1 छक्का सलीम स्टैन की पारी में मौजूद जरूर था। ये पारी का 10वां ओवर इस समय उमर इलाही डाल रहे हैं। 75 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। 141 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे। हालांकि अब तक गेंदबाजी राजा सलीम को नहीं दी गई है, जो वो खुद भी एक कप्तान है और ऐसे में वो गेंद को हिलाना जानते हैं, और मुझे लग रहा है कि वो समय आ चुका है जहां से राजा सलीम को गेंदबाजी करने के लिए आना चाहिए। और इस बार अच्छी गेंद उमर इलाही बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, और सोहेब भट्ट उनके सामने अब तक खेलने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए हैं। अब तक लगातार डॉट गेंदे हुए हैं और उमर इलाही को यहाँ भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। लगातार स्टम्प्स के आसपास ही गेंदबाजी कर रहे हैं। स्लिप कॉर्नर भी वहां नजर आ रही हैं और कुल मिला के फील्ड अनुसार गेंदबाजी कर रहे हैं। Yeah, he is bowling absolutely nice line and length, and both the batsmen are not able to pick his line and length. They are getting beaten and beaten again and again by the bowling of the Umar Alam. This time again beaten. The captain wanted to cut, but the ball was not there, not near to his bat. Is completely undone by the bowler, and that marks the end of the 9th over of the inning of WSA. The score is 75 for the loss of 1 wicket, and both batsmen Sajid Amla along with him captain are on the crease. और लगातार अब बातचीत हो रही है मैदान के अंदर, जैसा आप देख रहे हैं। सोहेब भट्ट और साजिद आमला इस समय आपस में बातचीत कर रहे हैं। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 75 रन बोर्ड पे हैं। अब तक 1 विकेट उन्होंने खोई है, और आउट होने वाले खिलाड़ी सलीम स्टैन, जिन्होंने 38 रनों का वहां योगदान दिया है। और ये लीजिए जीएम शाह और फिरदौस भट्ट भी अब मैदान के अंदर आ रहे हैं। अपने बल्लेबाजों से वो बातचीत जरूर कर रहे हैं। शायद वो सोहेब को यहाँ जरूर कुछ बोलेंगे, क्योंकि सोहेब पिछले कुछ ओवर्स में उतना बढ़िया
प्रदर्शन नहीं करके आए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एक साझेदारी बनाने का। और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर तनवीर सोफी, जो पेशे से एक सरकारी कर्मचारी हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो अपनी भूमिका निभाते हैं। आज इतवार का दिन है, ऐसे में आपका सिस्टम आज आपको कुछ नहीं करेगा। तनवीर भाई, स्वागत है कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच में। थैंक यू उमर भाई, यहाँ पे मौका प्रोवाइड करने के लिए, तो थैंक यू वेरी मच। बहुत ही दिलचस्प मैच इस वक्त जारी है वागुब और बीसीसी बांडीपुरा के दरमियान। एक बार फिर आपका शुक्रिया उमर। और ये तनवीर सोफी हैं, जो जैसा कि मैंने आपसे उनसे परिचय करा दिया है। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 75 रन 1 विकेट के नुकसान पे और आउट होने वाले खिलाड़ी सलीम स्टैंड, जिन्होंने 38 रनों का योगदान दिया, 6 चौके और 1 छक्का उनकी पारी में अब मौजूद जरूर हैं। और अब जो है इस समय बातचीत, गुलाम मोहिद्दीन और 2 जो जोड़ी इस समय मैदान के अंदर हैं, आपस में बातचीत चल रहे हैं। तनवीर भाई, आपको क्या लग रहा है? अभी भी 10 ओवर का खेल बचा है, 141 का उनको लक्ष्य मिला है, 75 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। हाँ बिल्कुल, इस वक्त जो सिचुएशन है वो वागुब की बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन है, क्योंकि अभी तक उन्होंने 1 ही विकेट खोई है और अच्छी खासी रन एवरेज जो है वो भी मेंटेन करके रखी है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बांडीपुरा के लिए ज़रूरी है कि वो विकेटें यहाँ पर हासिल करें। अगर वो विकेटें हासिल करने में नाकाम रहे तो डेफिनेटली ये जो मैच है वो वागुब की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा है, एक अच्छी चीज वागुब के लिए यहाँ यही है कि उन्होंने ज्यादा विकेट नहीं खोई हैं। केवल अब तक उन्होंने 1 विकेट खोया है सलीम स्टैंड के रूप में। तो अब गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है। मुदस्सिर लेफ्टी को गेंदबाजी की कमान सौंप दी जा रही है, जो अमूमन बल्लेबाजी पसंद करते हैं। हालांकि आज उनके बल्ले से उतने ज्यादा रन नहीं निकल रहे हैं और अब शायद वो सोच ही रहे कि कहीं गेंदबाजी उनकी अच्छी ना हो। तो हाँ उमर, मैं जहाँ तक मैंने इसको खेलते हुए देखा है कि मुदस्सिर लेफ्टी एक अच्छे स्पिनर बॉलर है, अच्छी ऑफ ब्रेक गेंदें डालते हैं और कभी कभी लेग ब्रेक गेंदें भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बॉलिंग चेंज है बांडीपोरा के लिए और यही उम्मीद के साथ इसको गेंद सौंप दी गई है कि 1 या 2 विकेटें यहाँ पर हासिल करें, ताकि जो वागुब भाई की टीम है जो उनको प्रेशर में लाए और जो रन रेट है उसको भी थोड़ा सा बढ़ाया जाए, ताकि ये मैच जो है वो अंत तक उसको ले जाया जाए। ऑन साइड में 3 खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन पे है, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। ये सभी तीनों खिलाड़ी बिल्कुल सीमा रेखा पे मौजूद हैं। ऑफ साइड पे 3rd मैन 30 गज दायरे के अंदर हैं, डीप पॉइंट और लॉन्ग ऑफ, ये 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर हैं। साजिद आमला के लिए ये गेंद थी, उन्होंने गेंद को खेला ऑन साइड की ओर, जहां डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी आ रहे हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। तब तक आसानी के साथ उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया है। बिलाल सुल्तान, फिरदौस बट, ही इज माय कजिन, स्नैप सम, जहां बोल रहे हैं कि बिलाल सुल्तान के बारे में वो इस समय बातचीत कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे बिलाल सुल्तान एक कमाल के फोटोग्राफर हैं और हालिया दिनों में वो काफी चर्चित में रहते हैं। और फ्रेंड्स, पब्लिक इस समय हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं और लगातार सहयोग दे रहे हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के। और यूं कहें तो ये ग्रेट लिसनर हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के। 77 रन बोर्ड पे ये पारी का इस बार बहुत बढ़िया शॉट, लेकिन राजा सलीम ने इस बार कैच लिया है, जो शॉर्ट कवर पे मौजूद है, एक बढ़िया कैच। और साजिद आमला का यहाँ होता है। बिल्कुल उमर, बहुत ही जबरदस्त कैच यहाँ पर राजा सलीम का। मैंने पहले ही कहा था कि मुदस्सिर लेफ्टी को इसीलिए बुलाया गया है ताकि 1 या 2 विकेट यहाँ पर इस ओवर में हासिल कर सके और वागुब भाई की टीम को जो उनको प्रेशर में लाए और रन रेट भी थोड़ी सी बढ़ाई दी जाए। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि साजिद आमला वापस लौटते हुए, एक शॉर्ट गेंद थी जिसको कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद को वो नीचे नहीं रख पाए और ना ही ज्यादा फील्डर के सर के ऊपर से खेल पाए और सीधे कैच थमा बैठे वहां पर राजा सलीम के हाथों में। इस तरह वागुब भाई की दूसरी विकेट पर यहाँ पर गिर गई है। हालांकि शॉट बहुत अच्छा था, ये मानना पड़ेगा, लेकिन गैप ढूंढने में इस बार वो असफल हुए हैं। इस विकेट की वो तलाश में थे, इस साझेदारी को वो तोड़ना चाह रहे थे और अंत में मुदस्सिर लेफ्टी उसमें कामयाब होंगे। और साजिद आमला के आउट होने के बाद अब वहीं से खिलाड़ी आ रहे हैं जहां से साजिद आमला ताल्लुक रखते हैं, बोनियार से। और नासिर बाली, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पारी का 11वां ओवर इस समय चल रहा है। 77 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। नासिर बाली अब मैदान के अंदर आए हैं, एक कमाल के खिलाड़ी हैं, बढ़िया टैलेंट हैं।
फहीम शफी लिख रहे हैं भाई शौकत भाई कब कमेंट्री करेगा। जहां शौकत भाई अब वापस जरूर जा चुके हैं, उनको एक मौका हमने यहां जरूर दिया है। जैसा हम हमेशा कहते हैं, कश्मीर सपोर्ट्स वॉच एकमात्र चैनल है वादिया कश्मीर की जो आपकी टैलेंट का सम्मान करते हैं और हम टैलेंट को हमेशा आगे भेजने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच और इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर, लेकिन थर्ड मैन पे खिलाड़ी वहां मौजूद था, युवा खिलाड़ी बांडीपुरा का, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस बार रन होने की वहां कोई संभावना नहीं, हालांकि वाइड के रूप में रन जरूर मिलेगा। हाँ उमर, मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी सी यहाँ पर लाइन से चूके मुदस्सिर लेफ्टी, तो लेकिन बहुत ही अच्छा ओवर जाता हुआ बांडीपोरा के लिए, क्योंकि एक सक्सेसफुल ओवर जारी है। नासिर वैली मैं देख रहा हूँ कि सामना करेंगे मुदस्सिर लेफ्टी का। मुदस्सिर लेफ्टी आए गेंद की और पिच गेंद, इस गेंद को खेलना चाहते थे, बाल बच गए, बिल्कुल बैट के करीब से जाती हुई विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर जारी है मुदस्सिर लेफ्टी की जानिब से, अच्छे एरियाज में वो गेंदबाजी कर रहा है। नासिर वैली अब सामना करेंगे मुदस्सिर लेफ्टी का। मुदस्सिर चले, आहिस्ता आहिस्ता चले, आए गेंद की शॉर्ट गेंद, इस गेंद को भी कट करना चाहते थे, एक बार फिर बीट हुए नासिर वैली। और मुदस्सिर लेफ्टी जिस तरह के गेंदबाज है, अगर आप उसको स्पिनर के तौर पे खेलते हैं तो आप वहां गलती करते हैं, और मुझे लग रहा है कि आपको उसे, ये मीडियम पेस बॉलर हैं, ये तेज गति से गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। नासिर वैली इस बार बैक फुट पे उन्होंने खेला, शॉर्ट कवर, वहां राजा सलीम बांडीपुरा की शान मौजूद हैं, रन बनाने का कोई भी मौका वहां मौजूद नहीं है। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति के बाद 80 रन 2 विकेट के नुकसान पे, और आउट होने वाले खिलाड़ी साजिद आमला और सलीम स्टैन। हालांकि तनवीर अभी भी, उनके कप्तान सोहेब भट्ट मौजूद हैं, सलामी जोड़ी के तौर पे ये आए हैं। ऐसे में इस विकेट को वो बल्लेबाजी जानते हैं कि वो किस तरह से यहां खेल रहे हैं। और इसी बीच देखे एक बहुत बढ़िया परिवर्तन अब देखने को मिलता हुआ, जहां वसीम अब्दुल्ला लिख रहे हैं, इट इज नमाज टाइम, लेट्स क्वाइट फॉर ए मोमेंट फॉर अल्लाह। जहां पे हम इस समय मौजूद हैं, यहां हमने अजान सुनी है, और अन्यथा आप जानते हैं कि हम अजान के समय क्या करते हैं, हम काफी ज्यादा दूर खड़े हैं, यहां हमें अजान की आवाज नहीं आई है, अन्यथा हम अपने माइक्रोफोन नीचे जरूर रखते हैं। तौफीक को लेके आए हैं अब बांडीपुरा के कप्तान, और ये बांडीपुरा का सबसे बढ़िया टैलेंट माना जाता है। बिल्कुल उमर, मैंने पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे बिल्कुल छाए हुए हैं। तौफीक इसका नाम है, इस लड़के का, बहुत ही छोटा सा लड़का है, तकरीबन 13-14 साल की उम्र का, और स्पिन गेंदबाजी कर रहा है। और मैं समय तो यहाँ पर मैं दाद देना चाहूँगा बीसीसी बांडीपुरा के जो कप्तान हैं राजा सलीम, उनके कि इस टैलेंट को निखारते हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि कई खिलाड़ियों को वो निखार चुके हैं, उनका टैलेंट पॉलिश करके वो उनको आगे भेजते हैं। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी चेंज होगी यहाँ पर, देखने लायक चेंज होगी। तौफीक देखते हैं कि किस तरह की गेंदबाजी करेंगे यहाँ पर तौफीक उनके सामने है बैट्समैन सोहेब, जो कि वाग क्रिकेट एसोसिएशन के कप्तान है। सोहेब लेफ्ट हैंडेड ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग स्पिन गेंदबाजी करता है। तौफीक आए, गेंद की अच्छी गेंद, इस वक्त इसको निकाल दिया है, स्क्वायर कट कर दिया, वहाँ पर फील्डर मौजूद, लेकिन गेंद को वो फील्ड में करने में नाकाम रहे, और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। जो ही देखा कि हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, इस गेंद को अपने पिछले पांव पर वजन लिया सोहेब ने, इस गेंद को स्क्वायर कट कर दिया है, पॉइंट बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। और इस बार कप्तान के बल्ले से ये चौका निकलता हुआ, और तौफीक के सामने अब उसको दबाव में लाया गया है, क्योंकि राजा सलीम से उनसे पहली बातचीत हुई थी इस गेंदबाज के तौर पे। अगर आप देखें, अगर आप शुरुआत में ही इस तरह की खराब गेंदबाजी करते हैं तो एक युवा खिलाड़ी के तौर पे आप दबाव में जरूर होते हैं। तौफीक एक बार फिर से आ रहे हैं, बाएं हाथ के गेंदबाज, इस बार फ्लाइटेड गेंद, और इस बार उठाया, वहां खिलाड़ी मौजूद है और उन्होंने कोई गलती नहीं की, एक और विकेट का वहां पतन होता हुआ। इस बार उनके कप्तान और तौफीक को जिसके लिए लाया था, उन्होंने वो काम जरूर करके दिया। उमर, जो ही देखा कि गेंद शॉर्ट ओवर पिच गेंद थी, लेकिन इस गेंद को पेस में कम किया था तौफीक ने, क्या शानदार गेंदबाजी, और वहां पर मुदस्सिर लेफ्टी मौजूद थे, इस गेंद को 6 रन के लिए भेजना चाहते थे मिड विकेट बाउंड्री से बाहर सोहेब, लेकिन गेंद की पेस कम थी, इसलिए इस गेंद को बाउंड्री से बाहर पहुंचाने में नाकाम रहे, और एक शानदार कैच वहां पर मुदस्सिर लेफ्टी का, और अच्छी विकेट यहाँ पर हासिल किया है बांडीपुरा ने। और जहाँ सोहेब भट्ट जो उनके कप्तान हैं, उन्होंने बहुत समय मैदान के अंदर जरूर बिताया था, एक सलामी जोड़ी के तौर पे वो मैदान के अंदर आए थे,
लेकिन तौफीक का वो शिकार बने। डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी वहां मौजूद था, उन्होंने कोई गलती नहीं की। काफी समय से गेंद हवा में झूल रही थी और बहुत बढ़िया कैच वहां लपका गया खिलाड़ी के द्वारा। ये तीसरी विकेट का वहां पतन होता हुआ। तो अब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर आ रहे हैं। शोएब भट्ट के आउट होने के बाद अब परवेज गनाई उनके उत्कप्तान आए हैं, उनको रीढ़ की हड्डी माना जाता है। और T20 फॉर्मेट की अगर आप बात करें तो ठीक ठाक आंकड़े हैं उनके। बिल्कुल, परवेज गनाई के साथ मैंने भी बहुत क्रिकेट खेला है। एक बहुत ही टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, अच्छे बैट्समैन है और कैलकुलेटेड बैट्समैन है। वो ऐसा नहीं है कि वो कभी भी रिस्क की प्लेयर नहीं, रिस्की शॉट वो नहीं खेलेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, जब भी कभी रिस्क लेनी हो तो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। तो यहाँ पर लेकिन फाइनल मैच है, मैं समझता हूँ कि अगर बांडीपोरा की टीम 1-2 और विकेट जल्दी जल्दी हासिल करने में कामयाब रहते हैं तो ये जो मैच है बिल्कुल आखिरी ओवर्स तक जाएगा और बहुत ही शानदार मैच देखने को मिलेगा शायकीन को। जी हाँ, 84 रन बोर्ड पे हैं। ये पारी का 12वां ओवर है। उमर इलाही स्लिप कॉर्नर में नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से अब परवेज गनाई की कोशिश होगी कि एक साझेदारी की और वो सोच रहे हैं और अब तैनात की जा रही है और एक बढ़िया कप्तानी भी जरूर कह सकते हैं। इस बार फ्लाइटेड गेंद, परवेज ने बढ़िया तरीके से गेंद को खेला है मिड ऑफ की ओर। तौफीक जाकर उन्होंने खुद गेंद को फील्ड किया है। एक रन से रुक नहीं पाएंगे। इस एक रन के साथ 85 रन, इसी के साथ परवेज ने अपना खाता भी खोला। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि नासिर बैली की विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट होगी वागुब के लिए। अगर इस मैच को बआसानी जीतना है तो नासिर बैली को अंत तक खेलना होगा। इस दौरान तौफीक आए फ्लाइटेड गेंद, इस गेंद को अच्छे तरीके से छोड़ दिया है विकेट कीपर के लिए नासिर बैली ने। शानदार गेंदबाजी यहाँ पर इस छोटे से लड़के की बहुत ही इंप्रेस किया है। छोटे से लड़के ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा तौफीक की जानिब से। बिल्कुल फ्लाइट करने से वो नहीं डरते हैं, जो कि एक अच्छे गेंदबाजी की निशान। देखिए फ्लाइट क्या है, इस बार इसको खेल दिया है 6 रन के लिए। और इस बार नासिर बैली के लिए ये गेंद थी और नासिर बड़े शॉट खेलने में कामयाब हमेशा होते हैं। इस बार स्लॉग स्वीप डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद गई दर्शक दीर्घा में। बहुत बढ़िया छक्का नासिर बैली के बल्ले से, ये पहला छक्का। इस छक्के के साथ 90 रन बोर्ड पे और ये मजा आएगा इस देखने में क्योंकि युवा गेंदबाज जो है ये चूकते नहीं है गेंदबाजी करने से। और ये लीजिए, और कितना बढ़िया गेंद, छक्के के बाद भी अगर आप इतना फ्लाइट गेंदबाजी करते हैं तो ये आपकी जिगरे की वहां दर्शाता है। मैं समझता हूं कि बहुत ही जिगरे वाले बॉलर है। एक छोटे से लड़के ने देखो किस तरह की फ्लाइट, छक्का खाने के बाद भी किस तरह की फ्लाइट गेंदें कर रहा है वो। बहुत ही शानदार गेंदबाजी और बहुत ही अच्छा टैलेंट। इस बार एक बार फिर यहाँ पर आउट होने का खतरा। बिल्कुल फील्डर के सामने गेंद गिरी और यहाँ पर दूसरे रन के लिए वापस जा रहा है नासिर बैली। शानदार गेंदबाजी इस तौफीक की जानिब से। इन 2 रनों के साथ 92 रन बोर्ड पे और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 92 पे 3 और आउट होने वाले खिलाड़ी शोएब भट्ट, सलीम स्टैन और हाशिम आमला। तनवीर, जैसे सलीम स्टैन ने पारी का आगाज किया है, मैन ऑफ द सीरीज के ये प्रबल दावेदार है, ऐसी मेरी जानकारी पहुंच रही है। ऐसे में आज के मैच में जिस तरह से उन्होंने पारी का शुरुआत किया है, मुझे लग रहा है कि वो रन काफी महत्वपूर्ण थे वागुब सपोर्ट्स एसोसिएशन के दृष्टिकोण से। बिल्कुल, सलीम का जो अंदाज खेलने का है वो वही है कि वो बिल्कुल पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलने आता है और बिल्कुल पहले ही वो काउंटर अटैक करता है। चाहे स्कोर कितना भी करना हो, क्या करना हो, वो उसकी तरफ नहीं देखता है। लेकिन वो ऐसे खिलाड़ी है कि जब वो विकेट पे ठहरते हैं तो बिल्कुल इस मैच को यकतरफा करते हैं। कल भी आपने देखा होगा कि पहले ही वो काउंटर अटैक उन्होंने किया कि जिसकी वजह से बाद में वागुब एसोसिएशन ने वो फाइनल जो है वो बासानी जीता है। तो सलीम को यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी सलीम की बैटिंग की, जो काउंटर अटैक वो करते हैं उसकी वजह से वागुब एसोसिएशन बहुत ही इस मैच में अच्छे से रहती है। और बहुत सारे जो मैचेस है वो उस सलीम की बैटिंग की वजह से वागुब एसोसिएशन जीत पाती है। तो मैं समझता हूं कि अगर वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट के हकदार है यहाँ पर, तो बिल्कुल अच्छी जो चूज हुई है उनकी जो बॉलिंग है, बैटिंग है, और वो एक हरपन मौला खिलाड़ी है। मैं समझता हूं कि एक अच्छा खिलाड़ी है और अच्छी जो चॉइस है उसको मैन ऑफ द टूर्नामेंट करा। जो मेरे सहयोगी कमेंटेटर हैं तनवीर, वो असल में बंडारा से ही ताल्लुक रखते हैं और सलीम स्टैन भी उसी विलेज से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में उनके लिए ये बहुत बढ़िया बात जरूर है। इतने बड़े इवेंट में जब आप मैन ऑफ द सीरीज के प्रबल दावेदार होते हैं, एक खिलाड़ी के तौर पे
आपकी मानसिकता में बहुत ज्यादा बदलाव जरूर होता है। इस बार नासिर बहली के लिए ये गेंद थी, गेंद को धकेला था ऑन साइड की और वहां डीप मिड विकेट का खिलाड़ी जहां उमर इलाही मौजूद है, दौड़कर 1 रन उन्होंने पूरा किया है। इस 1 रन के साथ 93 रन बोर्ड पे ये पारी का 13वां ओवर मुदस्सिर लेफ्टी इस समय डाल रहे हैं। उनके उप कप्तान इस समय परवेज गराई मैदान के अंदर मौजूद है। कीपर बिल्कुल स्टम्प्स के आगे बैठे हैं, कब उनका पांव हवा में उड़ जाए मैं पीछे से काम तमाम करूं। अगली बार आ रहे हैं, इस बार ज्यादा मालूम नहीं था, अतिरिक्त उछाल, कीपर भी झुकते नजर आ रहे थे, हालांकि स्टंप होने की वहां चांसेस जरूर थे। बिल्कुल यहाँ पर स्टंप चांस मिस किया है, लेकिन बहुत ही तेजी से ये गेंद आई थी। मैं समझता हूँ कि अगर आप इस लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं तो यकीनी तौर पे स्टंप आउट थे। यहाँ पर परवेज एक अच्छा चांस यहाँ पे मिस किया है बांडीपुरा के विकेट कीपर ने। बहुत ही महंगा पड़ सकता है ये चांस। मुदस्सिर लेफ्टी गेंद करेंगे नासिर बहली को, शॉर्ट गेंद, इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया है स्केल की जाने, वहां पर डीप मिड विकेट से बॉल फील्डर जब तक दौड़ते हुए इस दौरान दूसरे रन के लिए वापस मुड़े और मिसफील्ड, हल्की सी मिसफील्ड भी हुई कीपर से, लेकिन किसी और रन का इजाफा नहीं। 2 रन यहाँ पर हासिल किया है नासिर बहली ने। नासिर बहली की विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट होगी वागुब के लिए। मैं समझता हूँ कि जब तक नासिर बहली विकेट पर मौजूद है, ये वो नेचुरल जो है नेचुरल हिटर है इस क्रिकेट बॉल के, तो मैं समझता हूं कि वो जब तक वो गेंद पर विकेट पर रहेंगे तो इजीली जो वागुब जो क्रिकेट एसोसिएशन है उनके लिए कोई खासा परेशानी का बायस नहीं है। इस 1 रन के साथ 96 रन बोर्ड पे ये पारी का 13वां ओवर मुदस्सिर लेफ्टी इस समय डाल रहे हैं। 3 विकेटें हालांकि वोगुब एसोसिएशन ने जरूर खोए हैं, और अगर आप वोगुब एसोसिएशन की डगआउट की ओर नजर दोहराएंगे, लोन मोमिन मेरे मित्र चीते की तरह इंतजार कर रहे हैं अपने पारी का, अपनी बारी का, और उम्मीद करते हैं कि लोन मोमिन मैदान के अंदर जरूर आएंगे, अपना जलवा दिखाएंगे। जैसा कि मैंने अपने व्यूअर्स को पहले ही ये स्पष्ट तौर पे कहा था, लोन मोमिन मेरे जीवन के बहुत ही नजदीक है। मेरा जितना भी समय कमेंट्री के बाहर निकलता है और वो मैं लोन मोमिन के साथ बिताता हूं, ऐसे में स्वाभाविक तौर पे मैं उनको सपोर्ट करता हूं, लेकिन कमेंटेटर के तौर पे मैं बात टू द पॉइंट करता हूं और किसी को सपोर्ट नहीं करता हूं। जो वहां होती हैं वही मैं कहने का। बिल्कुल अमर, वागुब के लिए मैं समझता हूं कि लोन मोमिन की जो खोज है वो बहुत ही आला है। उसके साथ मैंने भी क्रिकेट खेला है, जहां तक मैंने देखा है कि उस एज के जो खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल, मैं समझता हूं कि जो फ्यूचर स्टार ऑफ नारद कश्मीर के तौर पर मैं उसको देखता हूं। जिस तरह का क्रिकेट वो खेलते हैं, बॉलिंग है, बैट, चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, हर एक शोबे खेल का जो हर एक शोबा है उसमें बिल्कुल अव्वल है और बिल्कुल ही आला जो हरपन मौला खिलाड़ी है। मैं समझता हूं कि वो फ्यूचर है नारद कश्मीर के, फ्यूचर स्टार ऑफ नारद कश्मीर है। जी हाँ, जब मेरी भी उनसे बातचीत होती है क्रिकेट को लेकर, और मैं उनको हमेशा यही बोलता हूं कि मेहनत आप करते रहें, और खास तौर से फिटनेस पे अगर वो ध्यान देंगे आने वाले समय में, और जिस तरह का टैलेंट उनमें है, तो हमें सभी को लगता है कि वो आने वाले समय में भी एक बड़ा खिलाड़ी के तौर पे उभर के जरूर आ सकता है। तौफीक 14 ओवर लेकर आ रहे हैं, गौरनेट से उनका सामना करेंगे नासिर बहली, और मुझे लग रहा है तनवीर कुछ होने वाला है, क्योंकि नासिर बड़े शॉटों खेलने की यहाँ फिराक में है, वो हमेशा तेज खेलना पसंद करते हैं। तौफीक और द विकेट आ रहे हैं, इस बार फ्लाइटेड गेंद बैकफुट पे, इस बार वो तैयार थे और वाइड की यहाँ प्रयास कर रहे हैं नासिर बहली, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं इस बोलने से। तौफीक एक अच्छे खिलाड़ी, एक युवा खिलाड़ी, करीबन 14 साल का खिलाड़ी, अगर इस स्तर पे खेलता है तो ये काबिलियत, और इस बार आगे निकलकर और गेंद गई दर्शक दीर्घा में, ये अब तक का सबसे बड़ा छक्का नासिर बहली के बल्ले से। बिल्कुल, जो ही देखा कि फ्लाइटेड गेंद है, अपने कदमों का इस्तेमाल किया नासिर बहली ने और गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर भेज दिया है 6 रन के लिए। मैं समझता हूं कि यह ओवर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो तौफीक है वो फ्लाइट करने से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, और जो दूसरी तरफ नासिर है वो भी शॉट्स खेलने से नहीं कतराते हैं, और मैं समझता हूं कि अच्छी बैटल है इन दोनों के दरमियान। इस दौरान तौफीक चले, आहिस्ता आहिस्ता चले, एक और फ्लाइटेड गेंद, इस गेंद को काट कर दिया है, वहां पर डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है, गेंद को फील्ड किया और 1 रन हासिल किया नासिर बहली ने। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा यहाँ पर तौफीक की जानिब से, फ्लाइट करने से बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं। मैं समझता हूँ कि इस गेंदबाज में बिल्कुल जो इसका दिल है बहुत ही बड़ा है, जिगरे वाले प्लेयर है। वादिया कश्मीर में तौफीक की काफी बातचीत होती है उसको टैलेंट को लेके, और इस बार फ्लाइटेड गेंद, इस बार परवेज ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर उठाया, वहां खिलाड़ी डीप पॉइंट का खिलाड़ी आ रहे हैं, उन्होंने गेंद को वहां बढ़िया तरीके से उठाया। इसी के साथ 100 रन बोर्ड के ऊपर
ये पारी का 14वां ओवर इस समय तौफीक डाल रहे हैं और 2 विकेट गेंदबाजी हो रही है और नासिर बैली उनके सामने बढ़िया कारगर सिद्ध होते हैं और शायद यही एक कारण है कि अब तक थोड़े से दबाव में ये गेंदबाज जरूर हैं। ये उनके कोटे का दूसरा ओवर है और नासिर बैली ने अब तक उनके विरुद्ध 2 छक्के अब तक जरूर लगाए हैं। नासिर बैली एक बार फिर स्ट्राइक पे फ्लाइटेड गेंद एक बार फिर से, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर थी। इस बार चतुराई का उन्होंने प्रयोग जरूर किया था, उनके रिडार में गेंद नहीं की थी। बिल्कुल, ये जो हल्की सी शॉर्ट गेंद की थी, चकमा देना चाहते थे यहाँ पर नासिर बैली को कि वो आगे आकर खेले और जो विकेट कीपर है पीछे से स्टंप आउट करने की कोशिश करे। इस दौरान तौफीक का एक और फ्लाइटेड गेंद, इस गेंद को भी छोड़ दिया। अंपायर का इशारा किए ऑफ स्टंप से बाहर गेंद और वाइड का इशारा अंपायर के जानिब से। फिर भी मैं दाद देना चाहूंगा इस बॉलर के, क्योंकि एक छोटा सा लड़का बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ खेल रहा है, तो मैं समझता हूं कि अच्छी सोच है तौफीक। सामने नासिर शॉर्ट गेंद, इस गेंद को कट करना चाहते थे लेकिन गेंद गई अंदरूनी किनारा लेकर, फर्स्ट स्लिप में वहां पर उमर इलाही मौजूद, किसी रन का इजाफा नहीं और ओवर मुकम्मल। और जी हां, 14 ओवर की समाप्ति के बाद 101 रन 3 विकेट के नुकसान पे वोगुब सपोर्ट्स एसोसिएशन की टीम, परवेज गनाई उनके उपकप्तान और नासिर बैली इस समय मैदान के अंदर उपस्थित हैं, मौजूद हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं खेलने का। अभी भी उनको 6 ओवर्स में अभी भी 40 रन चाहिए मैच जीतने के लिए और मुझे लग रहा है अगर बांडीपुरा को इस मैच में जीवित रहना है तो लगातार विकेट चटकाने होंगे, तब जाके वो इस मैच को जीत सकते हैं। या बिल्कुल, मैं समझता हूं कि इस जो ये स्टेज है गेम का, यहाँ पर बांडीपुरा को किसी भी सूरत में 2-3 विकेट जल्दी जल्दी हासिल करनी होगी, तब जाके वो गेम में वापस आ सकते हैं। और इस दौरान मीटिंग चलती हुई बांडीपुरा के दरमियान और यही मशवरा डेफिनेटली चलता होगा कि राजा सलीम अपने बॉलर्स को समझाता होगा कि मैच बिल्कुल काफी क्लोज आ चुका है, वागुब के पास विकेटें अभी भी मौजूद है, तो 1-2-3 विकेटें मुझे जल्दी जल्दी दिलाएं ताकि इस मैच में हम वापसी कर सकते हैं। मुदस्सिर मैं देख रहा हूं कि बॉलर के साथ कुछ बातचीत करते हुए, सीनियर खिलाड़ी है बांडीपुरा के मुदस्सिर, वो बातचीत करते हुए अपने साथी खिलाड़ी से, बॉलर से यही कहते होंगे कि हमें विकेटों की ज़रूरत है और अशद ज़रूरत है, 2-3 विकेट जल्दी जल्दी निकाल के दें ताकि इस मैच में हम वापस आ सकते हैं। गेंदबाजी में एक और बदलाव किया जा रहा है, नए गेंदबाज को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। बिलाल को गेंदबाजी की कमान वो सौंपने दे जा रहे हैं। अभी भी 40 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए WSA वोगुब को, तो लगातार उनकी जो जोड़ी है वो प्रयास कर रहे हैं मैच जीतने की। और फील्डिंग की अगर आप बात करें, खास तौर से ऑफ साइड की, स्लिप कॉर्नर में कोई खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे हैं। गली पॉइंट शॉर्ट कवर जहां पे उनके कप्तान खुद मौजूद हैं। 30 गज दायरे के अंदर आप 5 खिलाड़ी रख सकते हैं। ऑन साइड में 2 खिलाड़ी मौजूद हैं, डीप स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन, ये 2 खिलाड़ी वहां कैचिंग पोजीशन पे रखे गए। ये जो फील्डिंग लगा रखी है यहाँ पर बांडीपुरा के कप्तान है, मैं समझता हूँ कि ये रन्स को सेव करने के लिए है। और जहाँ तक विकेट्स मेरे सोचने का ताल्लुक है, विकेट्स मौजूद है तो आपको विकेट्स के लिए जाना होगा। यहाँ पर बॉलर आए गेंद की शॉर्ट गेंद, इस गेंद को खेल जाए। मैं पहले ही कहा था कि ये जो फील्डिंग है ये रन्स को सेव करने के लिए, बड़े स्ट्रोक्स को सेव करने के लिए है, एक या सिंगल या डबल रोकने के लिए नहीं है। यहाँ पर सिंगल्स और डबल्स भी रोकने होंगे बांडीपुरा की टीम को, तब जाके वो मैच में क्लोज आ सकते हैं। अगर वो ऐसी फील्डिंग यहाँ पर सजा के रखेंगे कि जिस तरह कि 1 या 2 रन सिंगल्स डबल्स आते रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वागुब के लिए कुछ ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि वो बआसानी तब जाके वे मैच जीत सकते हैं। यहाँ पर विकेटें लेने होंगी बांडीपुरा की टीम को। बिलाल आए, तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, सामने नासिर शॉट की, तेज गेंद को खेल दिया है, आउट होने का खतरा और यहाँ पर आउट। नासिर गनाई की विकेट यहाँ पर हासिल की है बिलाल ने। जो ही देखा कि शॉट गेंद थी, इस गेंद को पुल कर दिया था, वहां पर लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद थे जिन्होंने एक शानदार कैच लेकर नासिर बैली की इनिंग्स का खात्मा कर दिया। नासिर गनाई ने कुछ हद तक अच्छे स्ट्रोक जरूर खेले थे, इस बार बिलाल के विरुद्ध वो एक बार फिर बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे। वहां लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद हैं, एक अच्छा कैच लिया गया और एक विकेट का वहां पतन होता हुआ, ये 4वीं विकेट का पतन
और अब नासिर बाली के आउट होने के बाद अब ज़ोर जोलो मैदान के अंदर आ रहे हैं और अभी भी 40 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे। और ऐसे में अगर कुछ क्या और विकेट वो चटकाने में कामयाब होंगे तो ये मैच अभी भी जीवित है उनके लिए। बांडीपुरा एक ऐसी टीम है, ये ऑस्ट्रेलियन टीम जैसी होती है, अंतिम क्षणों में वो लड़ाई करते हैं, अंतिम क्षणों में वो लड़ते नजर आते हैं। बिल्कुल स्पिरिट भी यही होना चाहिए उमर के, जब आप खेलते हैं तो जब आप जो सामने वाली टीम होती है उसके विकेट्स हासिल करता है, कमबैक करता है, तो जो कमबैक टीम करती है वो बहुत ही खतरनाक बनती है। मैंने हमेशा देखा है कि जो भी टीम कमबैक करती है वो कमबैक के साथ साथ बहुत ही खतरनाक होती जाती है, उनकी सोच में तब्दीली आती है, उनके इंटेंट में तब्दीली आती है। यहाँ पर ज़ोहर जोलो की विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ज़ोहर जोलो एक या परवेज दूसरी जानिब अभी खेल रहे हैं, अगर ये दो जो विकेटें हैं, अगर बांडीपुरा की टीम ये दो विकेटें हासिल करने में कामयाब रहती है, मैं समझता हूं कि इस मैच में वो अपनी गिरफ्त मजबूत कर सकते हैं। ज़ोहर जोलो अब मैदान के अंदर आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। हालांकि ये बहुत बढ़िया समय है उनके लिए, 40 रन और बनाने होंगे। ये पारी का 15वां ओवर इस समय चल रहा है। बिलाल गेंदबाजी कर रहे हैं और बिलाल ने इस पारी की आज शुरुआत भी की थी। हालांकि शुरुआत में ये महंगे साबित जरूर हुए थे, लेकिन इस बार नहीं, इस बार अच्छी गेंद बिल्कुल जेड में और नासिर बाली उठाकर खेलना चाह रहे थे, बड़े शॉट की फिराक में वो इस बार जरूर थे और एक अच्छी गेंद थी और विकेट का वहां पतन होता हुआ। ज़ोहर जोलो अब अंपायर से गॉड लेते हुए, जैसा वो आपके स्क्रीन के सामने बिल्कुल आ रहे हैं। ज़ोहर जोलो अमूमन ये तेज खेलना पसंद करते हैं, लेकिन हालिया समय में उन्होंने अपने बल्लेबाजी पूरी तरह से बदल रखी है। अब वो थोड़ा समय लेते हैं हालिया दिनों में। हाँ, होता है कि जब कोई बैट्समैन जो उसका इंटेंट होता है वो तेज खेलने वाला होता है, तो कभी कभी मैच की सिचुएशन होती है तो वो फिर आहिस्ता खेलना पड़ता है। यहाँ पर बिलाल आए, यहाँ पर बिल्कुल प्यारों पर गेंद थी, इसको खेल दिया है। वहाँ पर मुदस्सिर लिफ्टी मौजूद, किसी रन का इजाफा नहीं, 33 गेंदें 40 रन। ज़ोहर जोलो की बात हम कर रहे थे, जब मैच की सिचुएशन के मुताबिक खेलना पड़ता है तो फिर आप अपनी नेचुरल गेम जो होती है, जो आप नेचुरल स्ट्राइकर होता है बॉल के, तो वो उस तरह के स्ट्रोक्स आप नहीं खेल पाते हैं, तो फिर आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के, अकॉर्डिंग टू मैच सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है। बिलाल अगली बार आ रहे हैं ज़ोहर जोलो के लिए। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जूमती हुई गेंद, जूमती हुई वहां गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। उन्होंने कोई वहां गलती नहीं की। ज़ोहर जोलो किसी भी खिलाड़ी के लिए जो पहला समय होता है, शुरुआती समय होता है, वो बहुत ही नाजुक होता है, जैसा आप जानते हैं, क्योंकि पैर उतनी बढ़िया तरीके से नहीं चल रहे। अब परिवर्तन फाइन लेग पे जो तौफीक नजर आ रहे थे, अब उसको स्लिप कॉर्नर में लाया गया है। तौफीक को, जो बांडीपुरा के युवा खिलाड़ी हैं, उसको अब स्लिप कॉर्नर में रखा गया है। और इस बार बहुत बढ़िया शॉट, इस बार आउटसाइड की ओर धकेला, वहां लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी फील्ड करने के लिए आ रहे हैं। बड़ी आसानी के साथ उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया है। इस 1 रन के साथ 102 रन। बिल्कुल, अभी भी 39 रनों की जरूरत है वागुब एसोसिएशन को ये फाइनल मैच जीतने के लिए। और ज़ोहर जोलो और परवेज की विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बांडीपुरा दूसरी जाने बांडीपुरा की टीम ये चाहेगी कि 1-2 विकेट जो है वो जल्दी जल्दी हासिल करें और इस मैच में वापस आ सके। अच्छी बात वागुब के लिए यह है कि उनके पास विकेट अभी भी मौजूद है। बिलाल सामने है, परवेज इस गेंद को खेलना चाहते थे, ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन बीट हुए गेंद के विकेट कीपर के दस्तानों में, किसी रन का इजाफा नहीं। और जितनी जितनी डॉट गेंदें होती रहेंगी ना, उतना ज्यादा दबाव और ज्यादा आएगा वहां वागुब स्पोर्ट्स एसोसिएशन के खाते में। और सबसे बढ़िया बात, अगर बीसीसी बांडीपुरा यहां विकेट लेने में कामयाब होंगे तो फिर मुझे लग रहा है कि और ज्यादा दबाव उनके ऊपर जरूर पहुंचेगा। और ये लीजिए, राजा सलीम और उमर इलाही आपस में बातचीत कर रहे हैं। इस समय आपस में बातचीत वो जरूर कर रहे हैं और शायद उमर इलाही को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। और रफीक निसार लिख रहे हैं कि मैच कहां पे है उमर भाई? मैच वारपुरा के मैदान में है। जैसा आप SNW का मैदान खूबसूरत है, उसी तरह से बिल्कुल भी ये मैदान है। बिल्कुल, क्या खूबसूरत मैदान है। मैदान के चारों ओर दरख्त ही दरख्त है और मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया मैदान आप यहाँ पर नहीं देख। जम्मू कश्मीर के कुछ ही मैदानों में एक खास मैदान है। मैं आज पहली बार यहाँ पर आया हूँ, बहुत ही इम्प्रेस हुआ हूँ इस मैदान को देखकर। मैदान, खासकर मैदान की जो लेवलिंग है उसको देखकर बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पर खेलने में। और
शानदार मैच इस वक्त जारी है। इस वक्त जो जुगनू प्रीमियर लीग का फाइनल वोगुब और बांडीपोरा के दरमियान जारी है। वोगुब को अभी भी शायद 30 गेंदों पर 39 रनों की ज़रूरत है। ज़ुहूर जोलो और परवेज विकेट पर मौजूद है। ज़ुहूर जोलो मैं समझता हूं कि अब बड़े शॉट्स के लिए जाएंगे, क्योंकि ये आखिरी ओवर्स तक इसको नहीं ले जाना चाहेंगे। आखिरी ओवर्स में फिर प्रेशर होगा और प्रेशर को यहाँ पर जो टीम नरू का कंट्रोल करेगा, प्रेशर को कंट्रोल करेगा, वही वो ये फाइनल मैच जीत सकती है। उमर इलाही ज़ुहूर जोलो के लिए आ रहे हैं अंतिम ओवर लेकर। इस बार अच्छी गेंद तरीको चाल के साथ। अचानक जब गेंद उठती है तो कोई भी खिलाड़ी आपके सामने है तो खेलने में वो कामयाब नहीं रहते हैं। खैर उमर इलाही आज उन्होंने बल्ले से थोड़ा निराश जरूर किया है, लेकिन गेंदबाजी से नहीं। और गेंदबाजी की अगर आप बात करें तो लगातार कड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं ज़ुहूर जोलो से। और उमर इलाही अपने कोटे का शायद अंतिम ओवर कर रहे हैं। 103 रन 4 विकेट के नुकसान पे वोगुब सपोर्ट्स एसोसिएशन 141 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। उमर इलाही 16वां ओवर लेकर आ रहे हैं। इस बार कदमों का इस्तेमाल, बड़ा शॉट खेलने की यहाँ चेष्टा जरूर की थी और इस बार अब हड़बड़ा रहे हैं उनके खिलाड़ी। यही बात मैं कह रहा था, उमर के प्रेशर को यहाँ पर कंटेन करना होगा। जो टीम प्रेशर को कंट्रोल करेगी वही टीम फातिया रहेगी। मैं समझता हूँ कि अभी ऐसे स्ट्रोक्स खेलने की जरूरत नहीं है। आप लूज गेंदों का वेट करिए और जब लूज गेंद आएगी तो उस पर अपने स्ट्रोक्स खेले और आसानी से रन करिए। उमर इलाही इस गेंद को, क्या शानदार गेंदबाजी उमर इलाही की जानिब से, बिल्कुल गेंद बैट को छकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। मैं देख रहा हूं कि अब जोश दिखाई दे रहा है बांडीपुरा के खिलाड़ियों में। उमर इलाही शानदार गेंदबाजी जारी करते हुए यहाँ पर। और उनकी बांडीपुरा की जो शान है, राजा सलीम लगातार अपने खिलाड़ियों को उत्साहित जरूर कर रहे हैं। जो खुद शॉट कवर पे खिलाड़ी वो मौजूद है, लगातार वो अपने खिलाड़ियों से बातचीत जरूर कर रहे हैं। अगली बार उमर इलाही इस बार दिलशान स्कूप खेलना चाह रहे थे और ये तभी खेला जाता है तनवीर जब आपके बल्ले से गेंद नहीं लगती है तो इस तरह के स्ट्रोक्स देखने को मिल सकते हैं। मैं समझता हूं कि यहाँ पर थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं ज़ुहूर जोलो। पहले विकेट आप बैट पे कुछ बालें लें और फिर अपने स्ट्रोक्स खेलें, सिंगल्स निकालें। यहाँ पर जो एरिया है, एरिया बिल्कुल खाली है। आप बिल्कुल बॉल को टैप करके दूसरे एंड पे जाइए ताकि आपका जो प्रेशर है वो थोड़ा रिलीज हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि बांडीपुरा की जो टीम है बिल्कुल एक विकेट लेने के बिल्कुल करीब है, क्योंकि ज़ुहूर जोलो जो है वो बिल्कुल इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि अपने नरू को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, जज्बात के साथ खेल रहे हैं इस वक्त ज़ुहूर जोलो। और अभी भी तनवीर 37 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। इस ओवर के बाद अब केवल 4 ओवर का खेल बचा है और ऐसे में ये कड़ा संघर्षपूर्ण मुकाबला होने जा रहा है। और जैसा हमने आज सुबह ही कहा है, बांडीपोरा की टीम वादिया कश्मीर में एक दिग्गज टीम मानी जाती है। ये उतने आसान से हारते नहीं है अंतिम क्षणों तक। वो इस बार बढ़िया शॉट था लेकिन उतना अच्छा नहीं कि रन लेकर जाएगी। इस बार सम्मान के साथ खेलना चाह रहे थे, वहां गली के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। अभी भी रुका हुआ स्कोर 103 रन। 5 डार्ट गेंदें यहाँ पर खेली ज़ुहूर जोलो ने। तारीफ करनी होगी उमर इलाही की गेंदबाजी की, शानदार गेंदबाजी उमर इलाही की जानिब से। इस गेंद को भी खेलना चाहते थे लेकिन अंपायर का इशारा किए वाइड बॉल। अब जाके 1 रन आया है और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 104 रन। इस अतिरिक्त रन के साथ 104 रन बोर्ड के ऊपर। ये पारी का 16वां ओवर उमर इलाही और अपने कोटे का अंतिम ओवर कर रहे हैं। अब तक हालांकि वो विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए हैं लेकिन एक अनुशासन गेंदबाजी इस बार गाइड किया। वहां बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद है, आसानी के साथ उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 16 ओवर की समाप्ति के बाद 105 रन। अभी भी 4 गेंदों में 36 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। 24 गेंदों में 36 रन। मैं समझता हूं कि यहाँ पर परवेज को अपना इंटेंट दिखाना होगा। परवेज को अपनी जो ये इंटेंशन है वो चेंज करनी पड़ेगी। 24 गेंदें 36 रन वागुब एसोसिएशन को ये मैच जीतने के लिए। मैं देख रहा हूं कि बांडीपोरा के तमाम खिलाड़ी राजा सलीम के पास खड़े हुए हैं। यही मशवरा चलता होगा कि अब इस मैच को यहां से कैसे जीता जाए। आपस में बहुत ही बातचीत करते हुए, दूसरी जानिब 2 बैट्समैन आपस में बातचीत करते हुए, पिच के बिल्कुल सेंटर में ज़ुहूर जोलो और परवेज आपस में बातचीत करते हुए बहुत ही शानदार मरहले में यह मैच दाखिल हो चुका है। यहां से इस मैच को कोई भी टीम जीत सकती है। अगर यहां पर बांडीपोरा की टीम ज़ुहूर जोलो की विकेट हासिल कर सकती है तो मैं समझता हूं कि ये मैच जो है ये 60% बांडीपोरा के तरफ जाएगा।
और आपने बिल्कुल सही कहा है, वो कहीं ना कहीं बांडीपोरा, ये आप जानती हैं, अगर यहाँ से किसी तरह से एक और विकेट उनके हाथ लगती है तो फिर उतना आसान नहीं रहेगा वोगुब सपोर्ट्स एसोसिएशन के लिए। 24 गेंदों में अभी भी 36 रन चाहिए उनको मैच जीतने के लिए। हालांकि उनकी बढ़िया जोड़ी मैदान के अंदर मौजूद है, ज़ुहूर जोलू और उनके उपकप्तान परवेज गनाई, लेकिन उतना आसान नहीं रहेगा यहाँ वोगुब सपोर्ट्स एसोसिएशन के लिए। और जुनैद को गेंदबाजी की कमान, उरूज को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, जिन्होंने शुरुआत में 3 ओवर किए हैं। अपने कोटे का अंतिम ओवर साइड स्क्रीन एंड से ला रहे हैं और ये मैच अब वहां जाके पहुंच चुका है तनवीर, जहां कमजोर दिल वालों के लिए ये मैच नहीं है। उरूज ओवर द विकेट, इस बार अच्छी गेंद, जेड में गेंद जरूर की थी, ज़ुहूर जोलू ने गेंद को धकेला ऑन साइड की ओर। वहां लॉन्ग ऑन पे उमर इलाही मौजूद है, आसानी के साथ दौड़कर उन्होंने 1 रन पूरा किया है। अभी भी 23 गेंदों में अभी भी 35 रन मैच जीतने के लिए चाहिए। परवेज, उनके उपकप्तान अब मैदान के अंदर मौजूद है, स्ट्राइक पे आ रहे हैं, उरूज का सामना कर रहे हैं। इस बार शॉर्ट गेंद, जगह बनाकर स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद की गति कुछ अतिरिक्त थी, डॉट गेंद जरूर हुई। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि परवेज को स्ट्रोक्स खेलने पड़ेंगे, ज़ुहूर जोलो को भी रन्स करने होंगे। और शानदार स्पोर्ट्स पे गेंदबाजी करते हुए राजा सलीम, यही एक बड़ी टीम की निशानी होती है, जब आपके टीम पर प्रेशर होता है तो वो प्रेशर को हैंडल करते हैं और शानदार गेंदबाजी प्रेशर में करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि उरूज क्या शानदार स्पॉट पे गेंदबाजी कर रहा है, बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहा है। उरूज साइड स्क्रीन एंड की जानिब से गेंदबाजी करेंगे परवेज को, उरूज ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, विकेट ऊपर पीछे शॉर्ट गेंद, क्या शानदार गेंदबाजी उरूज की जानिब से। एक बार फिर डॉट गेंद यहाँ पर उरूज की जानिब से। 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन दिया है और मैं सामिन को बताना चाहूंगा कि यह इनिंग्स का 17वां ओवर जारी है। अभी भी 35 रन की यहाँ पर जरूरत है। 21 गेंदों में अभी भी 35 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। राजा सलीम बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं अपने गेंदबाजी से, और क्यों नहीं, वो जानते हैं जिस तरह से वापसी की है बांडीपोरा ने, वोगुब ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगली बार फिर से आ रहे हैं उरूज, इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद थी, लेग बाई का वहां इशारा आता हुआ। अभी भी 20 गेंदों में अभी भी 34 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। ये मैच अब निर्णायक समय पे जाके पहुंच चुका है। बिल्कुल ये मैच उस मरहले में दाखिल हो चुका है जहां पर वागुब को 2 बड़े स्ट्रोक्स बहुत ही जल्दी दरकार है। ज़ुहूर जोलो वो कैपेबल प्लेयर है कि जो इस मैच को बिल्कुल अपने हक में 1-2 ओवर्स में कर सकते हैं। अगर वो 1 या 2 छक्के लगाने में कामयाब होते हैं तो ये मैच वागुब की जो टीम है वो आसानी से जीत सकती है। दूसरी जानिब बांडीपोरा की टीम जो इस वक्त बॉलिंग कर रहा है, बहुत ही शानदार एरियाज में वो गेंदबाजी कर रहा है, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहा है बल्लेबाजों को, जिसकी वजह से वागुब के लिए वो बहुत ही परेशानियां यहाँ पर पैदा कर रही है। उरूज गेंदबाजी करेंगे, सामने है ज़ुहूर जोलो, उरूज ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, विकेटों पर पूछे, शॉर्ट गेंद, इस गेंद को खेल दिया है, यहाँ पर आउट होने का खतरा मुदस्सिर लपटी गेंद के नीचे और ये ड्रॉप कर दिया यहाँ पर मुदस्सिर लपटी ने। ज़ुहूर जोलो का कैच बहुत ही महंगा पड़ सकता है, क्या ये फाइनल की ट्रॉफी यहाँ पर ड्रॉप कर दी मुदस्सिर लपटी ने, ये वक्त ही बताएगा। एक शॉर्ट गेंद थी, इस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लेते हुए गेंद गई मिड ऑफ पर, जहां पर मुदस्सिर लपटी ने एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया ज़ुहूर जोलो का। और इस बार एक मौका उत्पन्न जरूर हुआ था लॉन्ग ऑफ की ओर से, वहां मुदस्सिर लेफ्टी मौजूद है, उन्होंने बेहद बढ़िया प्रयास जरूर किया था। अंतिम क्षणों में गेंद उनके हाथों से छिटकती नजर आई और एक कैच का ड्रॉप वहां जरूर हुआ ज़ुहूर जोलो का। इस बार बैक ऑफ लेंथ गेंद थी, गेंद को बैक फुट पे खेला, वहां गेंद गई लॉन्ग ऑन की ओर, वहां उमर इलाही मौजूद है, उन्होंने बढ़िया प्रयास जरूर किया है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। अभी भी 18 गेंदों में अभी भी 31 रन और जीतने के लिए करने होंगे। 18 गेंदों में 31 रन मैच जीतने के लिए चाहिए। हालांकि विकेटें ज्यादा नहीं खोई हैं, वोगुब सपोर्ट्स एसोसिएशन ने अब तक 4 ही विकेटें उन्होंने जरूर खोई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि दबाव में फिर भी हैं। ये एक बड़ा ओवर चाहे यहाँ पर वागुब को, अगर ये फाइनल मैच जीतना है तो एक बड़ा ओवर चाहे जिसमें तकरीबन 15 या 18 रन आ जाए, और ताकि जो लास्ट वाला ओवर है उसमें कम रन बनाने को मिले। अगर इस लास्ट ओवर में 10 या 12 रन बनाने को मिले तो मैं समझता हूँ कि बांडीपोरा की टीम में इस मैच में वापसी कर सकता है। इसलिए ये जो ओवर है मैं समझता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर होगा इस फाइनल के लिए। और जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं उनसे हम निवेदन कर रहे हैं कि आप इस लाइव प्रसारण को लगातार शेयर करते रहें, ताकि जो अन्यथा लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ पाएंगे
और इस फाइनल का वो गवाह बनने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस लाइव प्रसारण को लगातार शेयर करेंगे। 18 गेंदों में अभी भी 31 रन चाहिए मैच जीतने के लिए और जुनैद को गेंदबाजी की कमान सौंपने दे जा रहे हैं। ज़ुहूर जोलू और परवेज गनाई इस समय मैदान के अंदर उपस्थित हैं, मौजूद हैं। ज़ुहूर जोलू इस समय स्ट्राइक पे हैं। ज़ुहूर जोलू उसको हमेशा बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा समय उन्होंने जरूर लिया है, लेकिन अगर वो यहाँ से मैच जिता पाएंगे अपनी टीम को तो हीरो के तौर पे उभर के आएंगे। उमर, अगर आपके पास तजुर्बा है, इसने बहुत सारे मैच ऐसे जितवाए हैं, तो आज अपने सारा जो तजुर्बा है वो यहाँ पर बरोए कार लाते हुए वागुब टीम को जो है फतह दिलानी होगी। ज़ुहूर जोलो को जो टीम प्रेशर हैंडल करेगी, जो टीम प्रेशर कंटेन करेगी, वो टीम फातिहा होगी। ये मैच उस मरहले में दाखिल हो चुका है जहाँ पर ये ब्लड प्रेशर वाला मैच बन चुका है। तो जुनैद मैच देख रहा हूँ कि साइड स्क्रीन एंड के बॉलिंग करेंगे, जो सामने है ज़ुहूर जोलो। बांडीपुरा के तमाम फील्डर सर्कल्स पर फील्डिंग करते हुए जुनैद ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, विकेट पर पूछे शॉट गेंद, इस गेंद को उछाल कर खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए गेंद के विकेट कीपर के दस्तानों में। एक और डॉट गेंद, इस बार ये अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर थी और डॉट गेंद जरूर हुए हैं। अभी भी 17 गेंदों में 31 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। ज़ुहूर जोलो स्ट्राइक पे है। जितने डॉट गेंदें ये खेलेंगे उतनी ज्यादा और मुसीबतें उनके लिए खड़े हो सकते हैं, दबाव उनके ऊपर जरूर बढ़ेगा डॉट गेंद खेलने से। उनके उपकप्तान परवेज गनाई इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद है। ये चले जुनैद ओवर द विकेट साइड स्क्रीन के एंड से। इस बार बहुत बढ़िया शॉट, तीर की तरह, गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए ज़ुहूर जोलो के बल्ले से ये चौका निकलता हुआ। शानदार शॉट, जो ही देखा कि गेंद उसके रडार में, इसको खेलता है बॉलर्स बैक ड्राइव 4 रन के लिए। और मैं समझता हूं कि प्रेशर रिलीज हुआ होगा ज़ुहूर जोलो से और अभी भी 27 रन दरकार है। अभी भी 17 गेंदों में अभी भी 27 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। क्षमा चाहूंगा, 17 गेंदों में अब अभी भी चाहिए। और ये लीजिए ज़ुहूर जोलो जो हैं उन्होंने एक बढ़िया स्ट्रोक जरूर खेला था, तीर की तरह, बॉलर्स बैक ड्राइव जिसको आप कहते हैं। जुनैद अगली बार फिर से आ रहे हैं ज़ुहूर जोलो के लिए। इस बार बहुत बढ़िया शॉट, लेकिन गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं और इस बार कैच ड्रॉप फिर से किया गया है। और ये लीजिए किस तरह की यहाँ कैचिंग हो रही है और कहीं ना कहीं ये दिक्कतें उनके लिए जरूर बढ़ सकती हैं। ज़ुहूर जोलो को आप इस तरह से कैचेस अगर आप छोड़ते हैं, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि फील्डर ने गलती की है, बॉलर को दौड़ने दिया है इस कैच को लपकने के लिए। वहां पर राजा सलीम भी थे और वो कीपर से बोल रहा है कि ये आपका कैच था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कैच राजा सलीम का, क्योंकि वो बिल्कुल गेंद के करीब थे और गेंद के शॉट के नीचे राजा सलीम थे, उसको लेना चाहिए था ये कैच। बॉलर जो है वो बॉलर को इस कैच को लपटने के लिए उसको मुश्किल आती तो, लेकिन वागुब के लिए अच्छी खबर है कि ज़ुहूर जोलो अभी भी विकेट पर मौजूद है। 15 गेंदों में 26 रन उनको मैच जीतने के लिए और जरूर चाहिए। और ये चले और इस बार अक्रॉस द लाइन उन्होंने खेलने का प्रयास, रन आउट होने की संभावना, अगर डायरेक्ट हिट लगती तो काम तमाम हुआ था यहाँ परवेज गनाई का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी भी 14 गेंदों में 24 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। ऐसे में कुछ बड़े स्ट्रोक्स की फिराक में इस समय ज़ुहूर जोलो जरूर है। पिछले गेंद पे एक जीवन दान उनको जरूर मिला है। बड़े स्ट्रोक्स यहाँ पर दरकार है वागुब टीम को ये मैच जीतने के लिए। जुनैद चले, सामने है ज़ुहूर, गेंद की अच्छी गेंद, एक बार फिर बीट किया ज़ुहूर को। शानदार गेंदबाजी जुनैद की जानिब से। 13 गेंदें 24 रन। 13 गेंदों में अभी भी 24 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। ऐसे में जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जरूर जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो इस लाइव कवरेज को लगातार शेयर लाइक करते रहे, ताकि जो अन्यथा लोग हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़ पाएंगे। आखिरी गेंद लेकर आ रहे हैं जुनैद, जो साइड स्क्रीन एंड से गेंदबाजी करेंगे। ज़ुहूर जोलो स्ट्राइक पे है और इस बार फिर से अच्छी गेंद, लगातार वो अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास कर रहे थे। अगर वो इसी तरह से खेलते रहेंगे और मुझे लग रहा है कि दिक्कतें उनकी टीम की ओर से होंगी। यहाँ पर खराब बल्लेबाजी ज़ुहूर जोलो की जानिब से। ये जो बॉलर है वो आउटसाइड टू ऑफ स्टंप गेंदबाजी, शॉर्ट गेंदबाजी कर रहा है और ज़ुहूर जोलो चाह रहा है कि इस गेंद को पुल करे। ये अगर वो दिन भर ये शॉट ट्राई करे तो दिन भर में ये 2 या 3 शॉट खेल पाएंगे। इस गेंद को आपने
थर्ड मैन की जानिब जब पॉइंट के ऊपर से खेलना होता है तब जाके आप रन जो है वो स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आप गलत शॉट ट्राई करेंगे तो दिन भर ऐसी गेंदबाजी होती रहेगी, तो दिन भर आप 5 या 6 शॉट्स ही कनेक्ट कर सकते हैं। ये मैच जो है बिल्कुल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। अभी भी 12 गेंदों पर 24 रन, 12 की औसत से यहाँ पर रन दरकार है वागुप टीम को। बांडीपोरा की तमाम टीम आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए कि ये मैच जो है बिल्कुल शानदार मरहले में दाखिल हो चुका है। सलीम, मैं देख रहा हूं कि राजा सलीम यहाँ पर अपने फील्डर्स को समझाते हुए कि आप ओवरथ्रो ना करें, कोई एक्स्ट्रा रन ना दे, बिल्कुल नॉर्मल गेंदबाजी करें। आखिर ये ओवर इंपॉर्टेंट ओवर होगा। अगर इस ओवर में भी 5 या 6 रन देते हैं बॉलर तो ये मैच जो है बिल्कुल बांडीपोरा के हक में जा सकता है। 12 गेंदों में 25 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। बिलाल अंतिम ओवर लेकर आ रहे हैं अपने कोटे का, 19वां ओवर इस समय ये डाल रहे हैं। 12 गेंदों में अभी भी 25 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। और ये मैच जो है ना, ये अब उस मुकाम पे जाके पहुंच चुका है जहां आप गलतियां नहीं करते हैं। राजा सलीम और बिलाल इस समय आपस में बातचीत कर रहे हैं और अपने गेंदबाज का वो मनोबल जरूर बढ़ा रहे हैं, जो एक बढ़िया चीज नजर आती है। परवेज गनाई उनका सामना करेंगे। बिलाल ओवर द विकेट साइड स्क्रीन एंड से कर रहे हैं, उनके सामने है परवेज उत कप्तान। इस बार वो गेंदबाजी करने के लिए जरूर चले गए थे, हालांकि बल्लेबाज अभी भी तैयार नहीं था और बोल रहे हैं कि मोमिन शुड हैव कम इन प्लेस ऑफ जोलो। वसीम अब्दुल्ला ये वोगुप के रहने वाले हैं, हमारा भी यही मानना है, लेकिन ज़हूर जोलू एक बड़ा नाम है कश्मीर का, जैसे आप जानते हैं। ये चले बिलाल ओवर द विकेट और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर। बहुत अच्छी गेंद थी मारने के लिए, लेकिन इस बार नहीं। और ये डॉट गेंद जरूर हुए हैं परवेज गनाई की ओर से। अगर आप कोचिंग के लिहाज से इस गेंद को खेलने चाहेंगे तो मैं समझता हूँ इस गेंद को आपको गाइड करना है। आप इस गेंद को कट नहीं खेल सकते क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा है। इसको आपने गाइड करना है, थर्ड मैन की जानिब और 1 रन हासिल करना है। लेकिन यहाँ पर जो बैट्समैन है वो गलतियां किए जा रहे हैं, इस गेंद को पुल या हॉट जाता है इस गेंद को। देखिए सर, एक और डॉट बॉल। अगर आप दिन भर ये शॉट ट्राई करेंगे तो मुश्किल होगी। डाउन द ट्रैक जाना होगा, या तो ये बिल्कुल जहाँ पर गेंद पिच होती है वहां पे पकड़नी होगी, या तो आपने इस गेंद को गाइड करके थर्ड मैन की जानिब खेलना है। थर्ड मैन भी बिल्कुल 30 गज दायरे के अंदर है। वोगुप एसोसिएशन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से वो क्या करना चाहेंगे। अभी भी 10 गेंदों में 25 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। जरूरत है यहाँ छक्के लगाने की। क्या परवेज गनाई उसमें कामयाब होंगे या नहीं। ज़हूर जोलू अभी भी नो सिटिंग एंड पे खड़े हैं। यहाँ पर परवेज को चाहे कि वो ज़हूर को स्ट्राइक दे, क्योंकि परवेज जो है वो दूसरे टाइप के बैट्समैन है और ज़हूर जोलो से हम सब जानते हैं कि ज़हूर जोलो ये जो बड़े स्ट्रोक्स खेलने में ऐसे जो ताकत रखते हैं। और इस वक्त बॉलर जो है गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। बॉलर चले, वाइड गेंद होगी और ये वाइड बॉल। अभी भी 10 गेंदों में अभी भी 24 रन चाहिए यह मैच जीतने के लिए। और बहुत ही कमाल का यहाँ प्रदर्शन जरूर किया है बांडीपोरा ने, यह मानना पड़ेगा। एक समय ऐसा लग रहा था जब वोगुप स्पोर्ट्स एसोसिएशन बड़ी आसानी के साथ इस मैच को जीत पाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना हुआ। बीसीसी बांडीपोरा लगातार प्रयास कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं उनको। ये चले बिलाल ओवर द विकेट साइड स्क्रीन एंड से और लगातार प्रयास किया जा रहा है। अभी भी गेंदबाज ये तैयार नहीं है और थर्ड अंपायर का प्रयोग किया जा रहा है तनवीर भाई। और जैसा आप कैमरा देख रहे हैं, साइड में 2 कैमरा लगाए गए हैं। ऐसे में ये जो तकनीकी यहाँ आजमाई गई है और ये बहुत बढ़िया संकेत है वादिया कश्मीर के लिए। इनोवेशन है और होनी भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके लिए मुबारकबादी के हकदार है यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है। बाद में इसके लिए बात करेंगे। इस दौरान बॉलर आए, इस गेंद को खेल दिया है। यहाँ पर रन आउट होने का खतरा, लेकिन बाल बच गए यहाँ पर ज़हूर जोलो। और ये गेंद भी लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद थी। निश्चित तौर पे वाइड का इशारा होना चाहिए। 2 अच्छे गेंद के बाद लगातार 2 वाइडे बिलाल ने अब तक जरूर किए हैं। 10 गेंदों में अभी भी 23 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। दो बड़े स्ट्रोक्स की यहाँ पर जरूरत है वागुप एसोसिएशन को। T20 फॉर्मेट के लिहाज से ये कोई बड़ा मसला नहीं है। इस बार अच्छी गेंद गाइड किया बैकवर्ड पॉइंट की और वहां खिलाड़ी मौजूद है। आसानी के साथ 1 रन दौड़ के उन्होंने पूरा किया है। अभी भी गहरा, अभी भी 9 गेंदों में अभी भी 22 रन चाहिए
मैच जीतने के लिए। अब एक अच्छी चीज हुई है कि ज़ुहूर जोलू जो है वो अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं। बिल्कुल, ज़ुहूर जोलू को स्ट्राइक मिली है, लेकिन अब देखना यह होगा कि ज़ुहूर जोलू का इंटेंट क्या होगा, वो किस तरह के शॉट्स वो जो है वो खेल पाएंगे और खेलने में कामयाब होते भी है या नहीं। मैं समझता हूं कि यहाँ पर मैच जो है बांडीपोरा के हक में चला गया है। अगर ये जो गेंदें हैं अगर ये अच्छी करते हैं बॉलर, तो यकीनी तौर पर बहुत ही मुश्किल होगा फिर वागुब के लिए ये मैच जीतने का। आपने बिल्कुल सही कहा है। 9 गेंदों में अभी भी 22 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। और ये चले बिलाल ओवर द विकेट, साइड स्क्रीन एंड से सामने है ज़ुहूर जोलू और इस बार बढ़िया शॉट, लेकिन वहां रन आउट होने की संभावना। गलत थ्रो। और ये लीजिए, परवेज तो काफी आगे निकल गए थे। अगर ठीक एंड पे उन्होंने थ्रो किया होता तो एक विकेट का वहां पतन होता हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है अब यहां से बहुत ज्यादा दबाव होगा वागुब के ऊपर। बिल्कुल, ये गलत थ्रो मुदस्सिर लेफ्टी के हाथ से, जिसकी वजह से परवेज की विकेट यहां पर बच गई है। एक यहाँ पर बिल्कुल 2 या 3 बड़े स्ट्रोक्स खेलने होंगे वागुब की टीम को, तभी जाके ये मैच में वापसी कर सकते हैं। ये मैच फंसता हुआ नजर आ रहा है वागुब के लिए। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा बिलाल की जानिब से। इस ओवर की आखिरी गेंद बिलाल आए, इस गेंद को खेल दिया है, क्या शानदार स्ट्रोक और गेंद बाहर जाकर गिरी 6 रन के लिए। और ज़ुहूर जोलू के बल्ले से इस बार बढ़िया शॉट रिडार में और गेंद गई दर्शक दीर्घ में। ये तो प्रयास उनका था, लेकिन आज शुरुआत में इस तरह के छक्के उनके बल्ले से देखने को नहीं मिले थे। अभी भी 16 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। 7 गेंदें अभी बची हैं और ऐसे में इस गेंद में देखना पड़ेगा कि क्या होने जा रहा है। बिल्कुल, ज़ुहूर जोलू जो है वो मैन ऑफ इंपॉर्टेंस है इस टाइम। अगर वो अंत तक यहाँ पर बैठते हैं विकेट पर, तो यकीनी तौर पर वागुब के लिए चांस है ये मैच जीतने के लिए। अभी भी 7 गेंदों में 16 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। ज़ुहूर जोलू इस समय स्ट्राइक पे हैं। पिछली गेंद पे उन्होंने छक्का जरूर जड़ा था बिलाल के विरुद्ध और अभी भी 16 रन और चाहिए 7 गेंदों में। ये चले बिलाल ओवर द विकेट, सामने है ज़ुहूर जोलू और इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, काफी पीछे खेल रहे हैं और अगर आप वहां से ये स्ट्रोक खेलते हैं तो ये बल्ले पे लगने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 6 गेंदों में 16 रन और चाहिए। आखिरी ओवर में 16 रन। परवेज स्ट्राइक पर है। परवेज को चाहिए कि पहली गेंद पर वो सिंगल ले और ज़ुहूर जोलू को स्ट्राइक और 5 गेंदें खेलनी होगी ज़ुहूर जोलू को, तो तभी चांस बन सकता है ये मैच के लिए वागुब एसोसिएशन को। परवेज को चाहिए कि एक सिंगल ले और ज़ुहूर जोलू को वापस स्ट्राइक पर लाकर खड़ा कर दें। अगर ये मैच जीतना है तो ज़ुहूर जोलू को कुछ करना होगा, क्योंकि वो एक कैपेबल प्लेयर है, वो 16 रन बना सकते हैं ओवर में। और ज़ुहूर जोलू अब 9 स्ट्राइक पे होंगे। परवेज गनाई जो उनके उपकप्तान हैं वो अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं और जुनैद पारी का अंतिम ओवर करेंगे। 6 गेंदों में अभी भी 16 रन मैच जीतने के लिए चाहिए। ऐसे में जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे एक प्रश्न है, आपका क्या मानना है, कौन सी टीम यहां से जीत पाएंगी ये मैच? अभी भी 6 गेंदों में 16 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। बांडीपोरा के खिलाड़ी लगातार आपस में बातचीत जरूर कर रहे हैं और देखना पड़ेगा कि ये 6 गेंदें जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस मैच को लेके। परवेज गनाई उनके कप्तान इस समय कप्तान इस समय स्ट्राइक पे हैं और ज़ुहूर जोलू इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद हैं। हालांकि लोन मोमिन को थोड़ा आगे लाना चाहिए था, लेकिन ये टीम मैनेजमेंट की इच्छा है, ये उनकी इच्छा होती है कि उनके खिलाड़ी कब कहां खेलते हैं, बेहतर वो यही लोन मोमिन बेहतरीन टच में है आज और बहुत ही शानदार क्रिकेट खेलते जा रहे हैं। एक शानदार क्रिकेटर है वागुब से। मैं समझता हूं कि परवेज की जगह लोन मोमिन को आना चाहिए था। अगर लोन मोमिन आए होते तो वो ज्यादा डार्ट्स नहीं खेलते और वो जो स्क्वायर कट है वो हर एक शॉट उसका अच्छा है। तो मैं समझता हूं जुनैद आ रहे हैं अब 20वां ओवर लेकर। 6 गेंदों में 16 रन और चाहिए। ये चले जुनैद और इस बार उन्होंने मनकट वहां वो अपील उन्होंने जरूर की है और अंपायर इस समय अब आपस में बातचीत कर रहे हैं और इस बार उन्होंने आउट करार दिया जा रहा है और मनकट के तौर पे और नियमानुसार शायद ये आउट भी होते हैं, लेकिन ये आउट है।
रूल्स के हिसाब से बिल्कुल ये आउट है, तो इसीलिए अंपायर ने भी इसको आउट ही करार दिया। मैं समझता हूँ कि ज़ोहर ज़ोलो वहाँ पर अभी भी खड़े हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो अभी तक वहाँ पर क्रीज पर मौजूद क्यों हैं। अंपायर से थोड़ी सी बातचीत शायद वो कर रहे थे और अब वो वापस जा रहे हैं। और ये लीजिए, ये विकेट का वहां पतन जरूर होता हुआ मनकट शायद इसको बोलते हैं, मनकट इसको बोलते हैं। और ये जो बैट्समैन है जब क्रीज से बाहर जाते हैं तो जो बॉलर है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो बैलेंस जो है वो बिखेरते हैं, तो इसको मनकट कहते हैं और इसको आउट करार दिया जाता है। हकीकी मानों में ये जो आउट है और हकीकी मानों में ये आउट होता है, और इसीलिए अंपायर ने भी कोई गलती नहीं की और इसको आउट करार दिया। जुनैद ने इस बार मनकट का प्रयास किया था और ज़ोहर ज़ोलो अब काफी बाहर थे और नियमानुसार उसको आउट करार दिया। अब जो लोन मोमिन आ रहे हैं मैदान के अंदर ज़ोहर ज़ोलो आउट होने के बाद, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस खिलाड़ी को आप इतने पीछे कैसे धकेल सकते हैं। अन्यथा टीमों में अमूमन ये 1 डाउन या 2 डाउन पे आते हैं, क्योंकि ये टैलेंट है, ऐसे में टैलेंट का सम्मान करना बहुत जरूरी। बिल्कुल ये टीम मैनेजमेंट का फैसला है, इसमें हम ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि लोन मोमिन की जो विकेट है, लोन मोमिन का जो टैलेंट है वो उसका भरपूर इस्तेमाल किया जाना चाहिए था और उसको आगे भेज देना चाहिए था। अभी भी 6 गेंदों में 16 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। अगर पहली ही गेंद पे छक्का लगाएंगे यहाँ परवेज गनाई तो इस मैच में अभी भी रोमांच बाकी है। ये चले जुनैद, 2 विकेट, और इस बार बहुत बढ़िया शॉट, बॉलर बैक ड्राइव, वहां उमर इलाही मौजूद हैं, उन्होंने गेंद को जाकर फील्ड किया। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। अब 5 गेंदों में 15 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। लोन मोमिन स्ट्राइक पे होंगे। यहाँ पर चांस है लोन मोमिन को आज हीरो बनने का। पिछले मैच में वो हीरो बनते बनते रह गए थे मेरी वजह से, लेकिन मेरी इस वक्त सारी फीलिंग्स उसके साथ है। मैं चाहता हूं कि आज वो अपनी टीम को यहाँ पर फाइनल जिताएं और अपने जो टीम है और अपने जो फैंस हैं उनको खुश करें और यहाँ पर हीरो का जो वो खिताब है वो अपने नाम करें। और पूरी तरह से दायरा बन चुका है जितने भी दर्शक यहाँ मैदान के अंदर आ रहे हैं, और ऐसे में लोन मोमिन इस समय स्ट्राइक पे है। जुनैद गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और इस बार बहुत अच्छी गेंद अपील हो रही है और पहली गेंद पे लोन मोमिन को चलता किया, और इसी के साथ अब लोन मोमिन का अंत होता हुआ। अभी भी 4 गेंदों में 14 रन चाहिए जीतने के लिए। मैं समझता हूं कि क्या शानदार गेंदबाजी और शानदार कप्तानी यहाँ पर की है बांडीपोरा के कप्तान राजा सलीम ने। यूं ही देखा कि जो बैट्समैन है वो शॉर्ट गेंदें खेलने में नाकाम रहता है, उन गेंदों को रन निकालने में नाकाम रहता है। हर एक बॉलर से यही कहा जाता है कि आप शॉर्ट गेंदें कीजिए, और वो पुल के लिए जाते हैं और यहाँ पर गेंदें डार्ट्स खेलते हैं। और इस जो गेंद थी बिल्कुल जो मोमिन है, क्योंकि वो छोटे कद के खिलाड़ी हैं और उसके ग्लव्स से लगते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में उतना आसान नहीं था जैसे नवीद गनाई पंजीपुरा की शान इस मैच का आनंद ले रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि आते ही समय में किसी भी बल्लेबाज के लिए उतना आसान नहीं रहता है। गनाई मुदस्सिर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और हम उनकी प्रतिक्रिया का सम्मान करते हैं। हर एक विचार होते हैं किसी भी खिलाड़ी के लिए। और शोएब डार जो वोगुब से ताल्लुक रखते हैं और वो लिख रहे हैं कमान बीसीसी बांडीपोरा, और ऐसे में भी इस तरह की चीजें भी कश्मीर में देखने को मिलती हैं। अपने घरेलू टीम को सपोर्ट नहीं करते हैं, और खैर वो उनकी खुद की इच्छा है, हम उनमें ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते हैं। 4 गेंदों में अभी भी 16 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, और मुझे लग रहा है कि यहां अब उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल जरूर होगा। हालांकि फिरदौस भट्ट इस समय मैदान के अंदर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, अगर टीम कोई भी जीते लेकिन हम बातचीत जरूर करेंगे किसी खिलाड़ी से। और इस बार बहुत बढ़िया शॉट और गेंद दर्शक दीर्घा में और अंत में, और ये लीजिए कितना बढ़िया कैच, बहुत ही शानदार कैच वहां लिया गया है। और ऐसे में अंपायर का इशारा, ये आउट, और ये एक और विकेट का वहां पतन। शानदार वापसी बांडीपोरा की जानिब से, और मैं समझता हूं कि जुनैद ने जो अपने नरू को कंट्रोल किया है, पहले गेंद पर मनकट आउट किया है ज़ोहर ज़ोलो को, उससे वागुब के जो प्लेयर हैं उनके हौसले जो वो पस्त हो गए हैं, और जो भी प्लेयर वापस खेलने के लिए आ रहा है उसके हौसलों से वो उस हौसले से नहीं खेल पा रहा है। और गेंदबाजी शानदार, लाजवाब गेंदबाजी जुनैद की जानिब से, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी जुनैद की, और ये मानना पड़ेगा कि वागुब के हाथों से ये मैच
उन्होंने निकाला है। और ये लीजिए अभी मैच समाप्त नहीं हुआ है, बधाइयों का सिलसिला अब जारी हो चुका है। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे जितने भी व्यूअर्स इस समय जुड़ चुके हैं, और मैं प्रयास करूंगा, आशा करेंगे कि वो हमारे साथ लगातार जुड़ते नजर आएंगे, क्योंकि बांडीपुरा की जो शान है, हम प्रयास करेंगे राजा सलीम से बातचीत करने का। अभी भी 3 गेंदें बाकी है और 16 रन की जरूरत है यहां पर वागुब टीम के लिए। जुनैद क्या शानदार और लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं जुनैद साइड स्क्रीन की जानिब से पहुंचे, गेंद की, इस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन अपील यहां पर, लेकिन अंपायर का इशारा कि नॉट आउट। अब सिर्फ 2 गेंदों का खेल बाकी रह गया है, 2 गेंदों में 16 रन चाहिए। अगर कोई वाइड या नो बॉल ना करें तो यकीनी तौर पर यहां पर बांडीपुरा की टीम की जो जीत है वो बिल्कुल यहां पर दिखाई दे रही है। शानदार गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी इस बॉलर की जानिब से। और ये लीजिए जुनैद ने बहुत बढ़िया ओवर ये जरूर डाला है, हालांकि उतना आसान नहीं था ये ओवर करना, लेकिन अगर आप में काबिलियत है तो आप वो दर्शा सकते हैं मैदान के अंदर। और इस बार बहुत अच्छी गेंद, ऊपरी किनारा, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। इस बार परवेज के बल्ले से गेंद ने ऊपरी किनारा लिया, गेंद गई बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। अब जो जीत की जो महक है वो अब आने लगी है, और जैसा लिख रहे हैं कि नजीर अहमद लिख रहे हैं, दे वेस्टिंग मोमिन एंड सलीम जॉन। ये एडवोकेट नजीर अहमद डार हैं, जो हमारे गांव के बढ़िया पर्सनालिटी मानी जाती हैं। एक सीनियर क्रिकेटर है वागुबा के, मैं इसकी राय की रेस्पेक्ट करता हूं। मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही राय है यहाँ पर एडवोकेट नजीर अहमद की। मोमिन और सलीम जान मैं समझता हूं कि उनको आगे लाना चाहिए था खेलने के लिए। जो परवेज है उसकी जगह आना चाहिए था मोमिन को या सलीम जान को। अब एक गेंद पर 10 रन, 12 रन यहाँ पर चाहिए वागुब की टीम को। यकीनी तौर पर ये यहाँ पर हार दिखाई दे रही है। वागुब बहुत ही बड़ा धचका, चूंकि जिस पोजीशन से उस बांडीपुरा की जो बॉलर्स है उन्होंने अपनी टीम को वापस लाकर खड़ा कर दिया है। और तनवीर भाई, आपने एक बढ़िया बात यह है कि इस खेल में हार जीत तो हमेशा होती है। ये अंतिम गेंद करने के लिए, और इस बार गेंद गई दूर दर्शक दीर्घ में, अंतिम गेंद में छक्का। राजा भाई, सलीम भाई, और ये लीजिए, और अंतिम गेंद में एक बढ़िया छक्का जरूर मिलता हुआ, और राजा सलीम को यहाँ कंधों पे उठाया जा रहा है। और आइए चलते हैं, हम राजा सलीम से बातचीत करते हैं, और जो बांडीपुरा की शान है राजा सलीम, आइए चलते हैं हम उनसे बातचीत करते हैं। और ये लीजिए जो बांडीपुरा की शान है राजा सलीम, वो इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और बधाइयों का सिलसिला निश्चित तौर पे जारी हो चुका है। उनको गले सभी मिला रहे हैं, और क्यों नहीं, वो जानते हैं कि जिस तरह के ये खिलाड़ी हैं और जिस तरह की ये पर्सनालिटी है, काफी सम्मान उनको किया जा रहा है। और ये देखिए, आप अपने स्क्रीन के सामने बिल्कुल देख सकते हैं, लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है राजा सलीम की। अगर आप बात करें, और जो उनकी फैन फॉलोइंग रहती है वो काफी कमाल की रहती है। आइए चलते हैं उनसे बातचीत करने का। और ये लिखिए, उनके जो कोच